मेरी ये गारंटी है, अगर आपने ये सेशन एंड तक देख लिया, आपका पूरा एनवायरनमेंट का प्रिपरेशन वुड बी एग्जाम ओरिएंटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स यू हैव गिवन फॉर आयर एंड मैपिंग सीरीज, जो हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर एनवायरनमेंट को कैसे पढ़े, क्योंकि हमने देखा है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन स्टैटिक बुक से एड्रेस नहीं हो रहे हैं। एंड यू नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां आप स्टैटिक के टॉपिक्स एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक आप लिंक फॉर्मेट में पढ़ो। एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई एम अपलोडिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन, जहां मैंने स्टैटिक एंड करंट एस्पेक्ट को इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में पढ़ाया है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, लेकिन करंट अफेयर्स भी इसमें इंटीग्रेट किया है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। हमने इस सेशन के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आई होप आप वीडियोस एंड नोट्स साइमल्टेनियसली देखें, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। थैंक यू। The first thing, as everyone does, is what do you understand by environment? हम environment and ecology पढ़ रहे हैं, तो environment समझना जरूरी है। And I'll try to tell you with an example कि environment क्या होता है। So basically, understand a school. School में what मतलब a person standing, a student standing in the school. For a student, what is an environment? I am trying to take an example, and from that we'll understand ecosystem also. What do you understand by ecosystem? So basically, environment refers to the surrounding or condition in which the organism or group of organism live. So basically, it is a surrounding in which an organism lives. So imagine a student is there, and in a school, what is the environment? For a student who is there and presently studying in a school, for him environment would be physical environment, or the non-living aspect. Benches, you'll be having classroom रहेगा, dusters, हमारा जो board रहेगा, you'll be having the infrastructures. So basically what we have is living, we have his non-living component, that is his surrounding environment. We'll be having living component also. Living component में क्या होगा? We'll be having teachers, other students, there would be plants in the trees. That would be the living aspect. And there would be man-made factors such as buildings हो गया, staircases हो गया, that are naturally created by man. तो this is the surrounding. This is basically the environment of that kid who is studying in a school. Similarly, हमारे organism में भी, if you consider on a broader scale, environment for any organism is anything which surrounds him. He'll be surrounded with living things, he would be surrounded with non-living things, and he would be surrounded with man-made factor, which is also a part of non-living, So basically, environment is basically which surrounds a individual. Anything refers to the surroundings in which the organisms live is known as environment. Okay? Then comes ecosystem. Basically, ecosystem refers to where where the living and non-living and living things interact with each other. So it's a part. So ecosystem is basically a part of environment. Environment mein you have various ecosystem. Ecosystem is basically where the living and non-living, there's an interaction between living living beings and non-living beings, and it could be interaction between living and living also. So basically, it is a community of living and non-living things which interact with each other. So in an environment, you might have various ecosystems. So basically, going back to the school example, you will be having various classrooms. You will be having 6 standard classroom, you will be having 7 standard classroom. So there what you have is interaction between students and teacher. This is living interaction. There will be interaction between teacher and the board. That is a non-living component. That is also interaction. So what happens in an ecosystem is this: it's a group of living, it's a community of living and non-living things which interact with each other, and what it forms is this ecosystem. So ecosystem forms the structural and function unit of ecology. It forms the structural and function unit of ecology of an organism. तो ठीक है, अब environment and ecosystem में different क्या है? Environment is a broader term, anything which surrounds. So imagine a student or a student who is standing in a school, anything which surrounds it is his environment. But ecosystem is where he interacts. So he interacts in a school. वो lunch time में lunch ecosystem, जो हमारा cafeteria रहेगा, वहाँ एक interaction कर रहा है. तो that is also an ecosystem where there is an interaction between. It's a community where there is an interaction between living and non-living aspect. तो हम इसको क्या बोलेंगे? Ecosystem बोलेंगे. So ecosystem is basically a smaller version. So within an environment we have multiple ecosystem. So this is an important concept जो आपको early stage में समझना पड़ेगा. An ecosystem has two components. It has a structural component and it has a functional component. An ecosystem is known as the functional unit of nature. It is also known as functional unit of environment. Why it is known as functional unit हम देखेंगे. It is also known as structural unit of
environment. अब ये क्यों देखते हैं? क्योंकि इकोसिस्टम में there are two parts. There's a structural part. Structural part is basically the physical and biological part. इसमें physical part में if we consider the even again the classroom का example ecosystem. Physical part में क्या आएगा? Dust, हमारा pen आएगा, हमारे board आएगा, हमारे benches आएंगे. That is the physical part. The biological part would be the teachers, students who will be there in that ecosystem. ठीक है? ये structural function structural part हो गया. That the physical and biological part is the structural part. And then you have the functional aspect. Functional aspect में क्या होता है? There is what is the function which is happening in this ecosystem. Functions किस तरीके से हो सकता है? There could be energy flow हो सकता है. There could be ये मैं क्लासरूम का एग्जांपल दे रहा हूं एंड एक्चुअल इकोसिस्टम में हमारे एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम में क्या होता है वो भी बताऊंगा. एनर्जी फ्लो मतलब क्या? द नॉलेज इज द एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टीचर to the student. So ये क्या हो गया? This is a flow of energy. This is the functional aspect of ecosystem which happens in an ecosystem. So basically the structural aspect says the structural aspect is the physical and biological aspect. Structural and biological aspect है that is living and non-living things. But जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें इन आवर एनवायरनमेंट, तो इकोसिस्टम में यू हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड यू हैव नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. यू हैव लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दोनों होता है. सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड द फंक्शनल एस्पेक्ट. Because why ecosystem is known as the functional unit of nature is here there is an interaction between living and non-living things, and it is happening in a cohesive format. And what are the functions which are carried out in an ecosystem? In actual ecosystem, यहाँ energy flow होता है, एनर्जी फ्लो होता है. सेकेंडली यहां न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, प्रोडक्टिविटी होती है एंड डिकम्पोजिशन होता है. सो दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर बीइंग कैरिड आउट. ये सब कुछ हम डिटेल में, हम जैसे लेक्चर फॉरवर्ड जाएगा सब कुछ देखेंगे. व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, व्हाट इज एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल. सो बेसिकली यहां अगर हम देखेंगे तो the first thing what happens in an ecosystem, now consider the ecosystem of a garden. There you have production. The function, one of the most important function, production होता है. Production, how does it happen? Is through sunlight which is captured by photosynthetic plant, and the biological products are made, the organic compounds are made. Then the energy from this is transferred in the form of nutrient cycles and energy flow के through ये it is transferred to the lower trophic levels or the higher trophic levels जो हम बोलेंगे. तो from the production by the photosynthetic plants to the herbivores, then to the carnivores, what happens is through these cycles there's an energy flow, and at the end when the carnivore dies there is decomposition, and this decomposition leads to it leads to nutrient cycle. There's the entire nutrient cycle is complete. So basically what happens in an ecosystem is there is not just structure, but what we have is functions like productivity or the production of organic compounds हो गया, the energy flow, the nutrient cycles, and the last and most important is decomposition. So basically what we have is an ecosystem is basically, अगर हम classroom की बात करें, so classroom में what happens is there is a teacher who is trying to give knowledge, that is energy flow, trying to understand what is energy flow. So what happens is energy flows from teachers to students. Then students also ask questions to the teacher. That is also a form of energy flow. So ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया. देन न्यूट्रिएंट साइकिल का एग्जांपल लेके तो क्या होगा? व्हाट डज टीचर डू इज टीचर गिव होमवर्क एंड द स्टूडेंट्स राइट इट एंड गिव इट बैक टू द teacher. So there is also a nutrient cycle, a flow of energy, flow of nutrients. So this is important. ठीक है? So this is actually what is ecosystem. तो ecosystem क्या? What we looked into is we have structural component and biological component, and these interact in an ecosystem. So what we have is in an environment we have different ecosystems. So in a school, which is consider school as an eco environment, and in a school what we have different ecosystem. We have a classroom, each classroom that is ecosystem. Then we have a cricket batch, or there's a cricket people group coming together to play a cricket. That is an ecosystem. Cafeteria is ecosystem where there is an interaction. There is a specific interaction. These are ecosystem. तो ये आपको concept समझना होगा. And what are the functions which happens in ecosystem? हमने ये भी देख लिया. What we have is production. We have nutrient flow. There's energy flow, and there's a decomposition. So these are the major functions of the nature which happens in ecosystem. That is why ecosystem is known as the functional unit of nature. Moving forward, what we have seen is there is level of hierarchy with respect to ecosystem organization. यहां से हमारा current aspect start होगा. ठीक है?
यहां से हमारा करंट एस्पेक्ट स्टार्ट होगा. सी स्पीड, एनी डाउट we'll try to cover it. हम रिवाइज भी करेंगे, रेगुलर फॉर्मेट में हम रिवाइज करेंगे, तो डू नॉट वरी. तो फर्स्ट इज एनवायरमेंट हमने समझ लिया, हमने इकोसिस्टम समझ लिया. इकोसिस्टम इज बेसिकली अ कम्युनिटी ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स व्हिच इंटरैक्ट इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट. ठीक है, इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट. अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. स्ट्रक्चरल इज बेसिकली द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. इसमें कंपोनेंट्स में क्या आएगा? हमारे एयर होगा व्हिच इज नॉन लिविंग थिंग्स, हो सकता है टेम्परेचर, एंड द लिविंग एस्पेक्ट वुड बी which has life, which there could be plants, animals. अब ये structural aspect हो गया. And functional aspect is which are the functions which are happening in an ecosystem. ये functional aspect हो गया, तो ये एक important है. And जब हम ecosystem देखते हैं, what we have seen is there are different level of organizations of levels of ecosystem organization. So what we have seen is there are various hierarchies. What do you say? With respect to living beings which are present in each level. So सबसे important what we have seen is in an ecosystem what we have is at the base level we have individuals. So in an ecosystem what we'll be having is we'll be having if we consider we'll be having trees, and there'll be butterflies, there will be animals. So we have individual living beings. Then we have population. Population is basically is a grouping of same species, same species. So if we consider what do you say? If we consider a forest, there the population would be basically we'll be having a hierarchy. We'll be having a population of tigers. So all the tigers would be considered together as a population. So basically हम population जब consider करते हैं, basically it is of a same species. And then we have community. Community में we have tigers and lions and deers. So all of these are together known as community. तो community में we have different species together. उसके ऊपर होता है biome. So basically biome क्या होता है? It is a biogeographical region which has characteristics which are defined by climate. So consider desert as a biome. So in desert we have the climatic, the region, the desert biome, the biological aspect, the flora and fauna of that region is characterized by the climatic region, that is known as biome. And उसके ऊपर होता है biosphere. Basically it is an area where all the living beings लिव. तो इसमें इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इतना जानना जरूरी है कि बायोम क्या होता है. पॉपुलेशन इज बेसिकली ऑफ पॉपुलेशन जब हम बात करते हैं इट इज ऑफ सिंगल स्पीशीज. कम्युनिटी हम बात करते हैं देयर आर मल्टीपल स्पीशीज इन इट. जब हम बायोम बात करते हैं तो इट इज अ biogeographical area which has various communities, and the features are defined by the climatic regions. इसको हम डिटेल में देखेंगे. एंड लास्ट इज बायोस्फीयर. हम जब बायोम देखते हैं इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है. ठीक है, इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है. सो बेसिकली जब हम बायोम देखते हैं इट इज अ बायोजियोग्राफिकल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज that has formed in response to the physical environment. So basically हम desert biome देखते हैं. Desert is a biome. अब desert में जिस टाइप के हमारे species रहते हैं, flora and fauna, उसके characteristics are defined by the climatic conditions. So in desert what we have is there's low rainfall, there's high temperature, and based on this climatic region what has happened is there's a specific community of flora and fauna which has been developed in desert in that region because of the climatic conditions. So any biome is defined by the climatic conditions. जिस टाइप के वहां what do you say flora and fauna रहेगा, it would be defined by the climatic condition. So basically अगर आप नोटिस करोगे हमारे वर्ल्ड में जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल बायोम्स है, these are defined by the climatic conditions. First what we have is we have desert biome. डेजर्ट हमारा क्लाइमेटिक रीजन है. अगर आप देखोगे, हम फ्यूचर में देखेंगे. देन वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, that is also a climatic region and biome. Then we have is savanna, which is also a climatic region and a type of biome. Then we have steppes, that is also a climatic region and a biome. So most of the biomes are represented by climatic regions. So biogeographic area. So what is a biome? It is a biogeographic region. It is a wider region. It can be part of multiple continents which has various communities in it. Various communities, and the feature of these communities are defined by the climatic condition. किस टाइप का फ्लोरा एंड फाउना होगा यहाँ, इट वुड बी डिफाइंड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन. तो यहाँ डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम बायोम देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड. हम साइड बाय साइड व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल लुक इनटू
the climatic condition. हमारा British type of climate, Mediterranean type of climate, and the biome, we have an associated biome क्योंकि that region is defined by climate. That region is defined by climate. चलेगा. So what we studied was with respect to हमारा biome. Biome are basically biogeographic region which are defined by the climates. अगर हम देखेंगे यहाँ definition देखेंगे, these are biogeographical unit considering मतलब what consisting of biological communities that are formed in response to the physical environment. This is defined by physical environment. So what we have is we have tundra biome and हमें टूंड्रा क्लाइमेटिक रीजन भी है, हमारा टाइगा बायोम भी है, एंड वी हैव टाइगा क्लाइमेटिक रीजन, वी हैव डेजर्ट बायोम व्हिच इज डिजाइन्ड बाय डेजर्ट. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट इज अ बायोजियोग्राफिक रीजन which is defined by the flora and fauna is defined, its characteristics are defined, और जो हमारे एडेप्टेशन होता है इट इज डिजाइन्ड बाय द क्लाइमेट. सो बायोम्स जब भी पढ़ रहे हो तो यू हैव टू साइमल्टेनियसली स्टडी द क्लाइमेटिक रीजन. जब तक आप क्लाइमेटिक रीजन नहीं पढ़ोगे आपको बायोम अंडरस्टैंड नहीं होगा. सो वी विल बी स्टडीइंग द क्लाइमेटिक रीजन इन शॉर्ट आल्सो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से बायोम उस रीजन में है. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो हमने क्या देखा, इन अ इकोसिस्टम वी हैव वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है. एट द बेस व्हाट वी हैव इज इंडिविजुअल होता है. देन इंडिविजुअल इज a group of individuals from the same species is known as population. A population could be of tigers, population could be of lions, deers, ये population होता है. And population क्यों सबसे important part है, population एक species का होता है. So if you want to understand कि यार in a ecosystem की health कैसी है, ecosystem, whether the ecosystem is fine, it is healthy, you have to know the population, whether पॉपुलेशन क्या हो रहा है ऑफ दैट स्पीशीज कम हो रहा है. सो इमेजिन देयर इज a virus which is infecting lions, canine distemper virus which affects the lion, and what happens is suddenly the number of lions decreases and what we see is इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है. जब हम पॉपुलेशन कम हो रहा है तो हम क्या देखेंगे, यार यहाँ इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम में क्या हुआ है, देयर इज अ इन्फेक्शन व्हिच इज देयर, और सडनली व्हाट हैपेंस इज द नंबर ऑफ डियर कम हो जाते हैं. वाई डियर कम हो जाते हैं, बिकॉज ड्रॉट आ रहा है. तो ड्रॉट आया, डियर कम हो गए तो क्या हो गया, लायंस डज नॉट हैव अ व्हाट डू यू से, प्रे नहीं है. तो इफेक्टिवली जब ड्रॉट आता है या इफ देयर इज लैक ऑफ वाटर, it shows the entire ecosystem is affected. And how would we know कि ecosystem is being affected is by the population of species. Population जितना of a specific species हम देखेंगे जब regular interval पर हम count करेंगे तो we'll understand कि क्या situation है ecosystem का. इसलिए हम क्या करते हैं, what we do is we on a regular interval what we do is we try to calculate or we try to enumerate, or what we try to do is we try to gauge the population of various species in our ecosystem. So what ecosystem is, we have Himalayan ecosystem, we have Kutch ecosystem. So what we try to do is regular interval पर हम ये population of species को count करते हैं. अब ये इसके पूरे process को हम क्या बोलते हैं, census बोलते हैं. So basically what we know through this census of or counting the population is we try to know कि यार क्या हो रहा है, whether a specific community का population कम हो रहा है या बढ़ रहा है, which shows कि हमारा ecosystem कैसा है. अगर ecosystem if the biological component या physical component affect हो गया, if there is lack of water, तो क्या होगा, पूरे इकोसिस्टम में क्या होगा, पानी कम हो गया, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट यू से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम हो जाएंगे, हमारे जो प्लांट्स हैं उनका नंबर्स कम हो जाएगा, उनका नंबर्स कम हो गया, इफेक्टिवली इट वुड अफेक्ट द डियर्स हु आर हर्बीवोर्स, डियर्स कम हो गए तो हमारे लायंस कम होगा. तो बेसिकली जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इकोसिस्टम का स्टेटस क्या है, एंड effectively once we do census we are able to also focus on conservation of specific species. So imagine we have lions who are endangered animals and उनका population कम है, तो जब हम regular interval पर population check करते हैं lions का, तो we try to understand whether lion का population कम हो रहा है, बढ़ रहा है. तो we have an idea with respect to conservation, whatever steps we are taking, are they effective. तो basically जब भी हम census conduct करते हैं तो एक तो हमें ये पता चलता है कि इकोसिस्टम का हेल्थ क्या है, इकोसिस्टम का हेल्थ क्या है. सेकेंडली वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी हम कंजर्वेशन मेजर्स ले रहे हैं आर दे इफेक्टिव. हमने प्रोजेक्ट टाइगर तो लॉन्च किया, हमने प्रोजेक्ट लायन तो लॉन्च किया, बट इज इट इफेक्टिव. हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट तो लॉन्च किया, बट इज इट इफेक्टिव. तो ये कैसे समझेगा
ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज। तो पॉपुलेशन में जब भी हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो यू अंडरस्टैंड, हम सेंसेक्स जब भी कंडक्ट करते हैं, सेंसेक्स में इट हैपेंस ओवर अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन। अगर हम जोग्राफिकल रीजन में कंडक्ट करते हैं, एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंडक्ट करते हैं, एंड एफ अ स्पेसिफिक स्पीशीज का काउंट करते हैं। अगर हम ह्यूमंस का सेंसेक्स कंडक्ट करते हैं तो हम इंडिया में कंडक्ट करते हैं, 2021 का ऑफिशियल होना था, अभी 2025 में होने वाला है बोल रहे हैं, एंड हम ह्यूमन बींग्स का कर रहे हैं। तो ये हो गया सेंसेक्स। जब भी हम सेंसेक्स या पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो एक रीजन में काउंट करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में काउंट करते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीशीज का करते हैं। तो हम एनवायरमेंट में व्हाट वी डू इज हम वेरियस सेंसेक्स कंडक्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट है टाइगर सेंसेक्स करते हैं, विच हैपेंस एवरी 4 years। जैसे ह्यूमंस का सेंसेक्स हम इंडिया में जब करते हैं इट हैपेंस एवरी 10 years, लेकिन हम जब टाइगर्स का करते हैं इट हैपेंस एवरी 4 years। So you should know this important thing। ठीक है, 2022-23 में the report was launched। Then you have lion census which happens every 5 years। Lion census happens every 5 years। 2020 में लास्ट लायन सेंसस हुआ था, 2025 में नेक्स्ट लायन सेंसस होने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बेसिकली इसमें भी हम इनडायरेक्टली सेंसस नहीं कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट इज द लेवल ऑफ फॉरेस्ट। तो इट हैपेंस एवरी 2 years, इट इज नॉट एक्चुअली अ सेंसस। ठीक है, गैंजेटिक डॉल्फिन सेंसस हैपेंस एवरी 1 year, इट हैपेंस स्टेट वाइज। तो बॉडी से हमारा यूपी कंडक्ट करता है, बिहार कंडक्ट करता है, वेस्ट बंगाल कंडक्ट करता है। तो इट हैपेंस एवरी ईयर and conducted by the respective state government. Now for the first time what we are going to have is a comprehensive census of dolphin, gangetic dolphin and Indus water dolphin across India at once। तो ये भी एक important initiative है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। Rhino census होता है आसाम में which happens every 3 years। We have elephant census across India which happens every 5 years। And सबसे important है most of these census happen at the state level। जैसे राइनो सेंसस सिर्फ आसाम कंडक्ट करता है, आसाम गवर्नमेंट कंडक्ट करता है। गैंजेटिक डॉल्फिन सेंसस मतलब हमारा ये भी करता है, व्हाट डू यू से, हमारा यूपी अलग से करता है। फर्स्ट टाइम हम साथ में कर रहे हैं। हम जब स्नो लेपर्ड सेंसस कर रहे तो हमने क्या कर दिया, उस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने अकेले मतलब व्हाट वी हैपेंड इज इट हैपेंड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑफ द हिमालयन स्टेट्स एंड देन द डेटा वाज कंबाइंड। तो व्हाट वी हैव सीन इज नेशनल लेवल पर सिर्फ टाइगर का सेंसस होता है, रेस्ट ऑफ द सेंसस हैपन एट द स्टेट लेवल। जैसे लायन का सेंसस सिर्फ गुजरात में होता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन गिर कंजर्वेशन एरिया में ही है। तो इसी तरीके से राइनो का सेंसस सिर्फ आसाम में होता है। एवरी स्टेट कंडक्ट्स इट इंडिपेंडेंटली। आसाम भी करेगा, उत्तर प्रदेश भी करेगा, वेस्ट बंगाल भी करेगा, लेकिन इट हैपेंस इंडिपेंडेंटली। बट जो टाइगर सेंसस है इट हैपेंस ओनली एट द नेशनल लेवल। एंड एक्चुअली इट इज an assessment। जितना भी मैं सेंसस वर्ड कर रहा हूं इट इज नॉट एक्चुअल सेंसस, इट इज एन असेसमेंट। यहां असेसमेंट बोलता है जब भी असेसमेंट, क्योंकि ऑल द न्यूज़पेपर एंड ऑल द व्हाट यू से जितने भी हम बुक्स पढ़ते हैं वहां सेंसेक्स टर्म्स यूज किया जा रहा है, बट इट इज एन असेसमेंट। असेसमेंट क्यों है एंड व्हाई इट इज नॉट एक्चुअली एन सेंसेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स में इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज काउंटेड। तो हमारा जब ह्यूमन का सेंसेक्स होता है, जो एक्चुअली हमारा 2021 में सेंसेक्स होना था, वेयर इंडिविजुअल नेम, एवरी नेम ऑफ पर्सन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। हर एक बंदे को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सुदर्शन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये व्हाट से, ये साहिल है, ये सयान है, ये निकिता है। ये हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उनका पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। दैट इज एक्चुअल सेंसस। असेसमेंट में क्या है, अगर आप टाइगर सेंसस देखोगे वहां बोला है 3100 से 3900 के बीच में है। These are the number। ये असेसमेंट है उनका। They do not actually count each and every what do you say every tiger। वो ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में कैमरास लगाते हैं। I'll try to tell you the procedure also and check कि इस एरिया में, इस टाइम फ्रेम में अगर हमें 10 टाइगर दिखा है इस एरिया में, अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में 10 टाइगर है तो वी हैव 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो कितने होंगे। सो बेसिकली इट इज एन असेसमेंट, इट इज नॉट एन एक्चुअल सेंसस। तो जितना भी आप सेंसस डेफिनेशन पढ़ोगे, हम क्या कर रहे हैं, वेगली से सेंसेक्स बोल रहे हैं, बट इट इज एन असेसमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है। इट इज एन असेसमेंट बोलता है, असेसमेंट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, इस तरीके से रिपोर्ट का नाम रहेगा। इट इज नॉट सेंसस ऑफ टाइगर। वेगली इट इज बीन यूज्ड, हम इसको वेगली हम बोल रहे हैं सेंसेक्स है। सेंसेक्स में एवरी इंडिविजुअल इज आइडेंटिफाइड, यहाँ एवरी एनिमल इज नॉट आइडेंटिफाइड। ये एक असेसमेंट होता है, हम रफ वैल्यू बता रहे हो। तो जब भी टाइगर सेंसेक्स आया होगा आपने देखा होगा, उन्होंने बोला होगा समवेयर बिटवीन 3100 टू 3900। उन्होंने एक मिड वैल्यू बोल दिया कि अराउंड 3643, इस तरीके से एक नंबर बोल दिया कि इतने टाइगर्स हैं। सो उन्होंने एक्चुअली 3600 टाइगर्स चेक नहीं किए, उन्होंने मिनिमम 3100 टाइगर्स देखे हैं एंड उनको एस्टिमेशन के हिसाब से क्या हुआ है,
कि ये इतना एक्स्ट्रा टाइगर्स भी रह सकते हैं, तो इट इज एन असेसमेंट. सो आर यू एबल टू गेट कि हम पॉपुलेशन क्यों चेक करते हैं ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन क्यों चेक करते हैं ऑफ स्पीशीज. आपको समझ आया एनवायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम. क्लासरूम का एग्जांपल लेना है, इकोसिस्टम समझ आएगा. ठीक है, स्कूल एंड क्लासरूम का एग्जांपल लोगे तो इकोसिस्टम समझ आएगा, किसी को भी समझ आएगा. उसमें भी हमने देखा, हमने क्या कर दिया, अब स्कूल में भी अगर हम टीचर्स और इसका स्टूडेंट का अलग डिफरेंट स्पीशीज देखे तो हम क्या होगा, सबसे पहले होगा तो वो भी आप समझ लो इंडिविजुअल होता है, उसके ऊपर पॉपुलेशन होता है. पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक स्पीशीज का होता है, कम्युनिटी में वेरियस स्पीशीज होते हैं. वी हैव टाइगर, लायन, डियर एक साथ, इन दो सबको मिला के इन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, इसको हम कम्युनिटी बोलेंगे. उसके ऊपर होता है बायोम. बायोम मतलब क्या, द एरिया, द बायोजियोग्राफिक यूनिट, उसका जो डेफिनेशन है, जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लोरा एंड फाउना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इज डिफाइंड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन. तो डेजर्ट में व्हाट वी हैव इज जीरोफाइटिक एडाप्टेशन होता है. एंड हमारे टुंड्रा टाइगा में देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडाप्टेशन. एनिमल्स एंड प्लांट्स उसी तरीके से हमें दिखेंगे. तो उस रीजन का जो स्पीशीज है, दीज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइंड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. हम पॉपुलेशन क्यों कैलकुलेट करते हैं ये आपको बता दिया. एक तो है हमें पता चलेगा कि इकोसिस्टम की हेल्थ क्या है. ठीक है, इमेजिन कि हमारे स्कूल में सडनली क्या हो गया, बच्चे स्कूल आना कम हो गए, तो व्हाट विल अंडरस्टैंड यार बच्चे क्यों कम हो रहे हैं. सो दिस इज विंटर रीजन या विंटर सीजन चल रहा है एंड सडनली देयर इज अ फ्लू, cold, a virus which is there among all the kids. So we'll be able to understand, हाँ यार इस वजह से क्या हो गया कि हमारा नंबर्स कम हो गए, स्टूडेंट्स इन द स्कूल क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो बीमार. तो वी अंडरस्टैंड कि यार सराउंडिंग में एक नया वायरस है. सेकेंडली, तो जो सुबह सुबह स्कूल में जब ये काउंटिंग होता है ना, हर एक, इफ यू हैव बीन इन अ, मतलब आई नो यू हैव बीन इन अ, एवरीवन हैज बीन इन अ स्कूल, तो काउंटिंग होता है, हेड काउंटिंग होता है. दैट इज अ काइंड ऑफ सेंसस. रोज देखा जाता है यार कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. स्पेसिफिक काउंटिंग होता है डेली बेसिस पर, क्लास बेसिस पर होता है. तो दैट इज बेसिकली अ सेंसस. जो क्लास का काउंटिंग होता है कि कितने बच्चे आज प्रेजेंट है इन दैट क्लासरूम, दैट इज स्पेसिफिकली अ सेंसेक्स. तो इससे पता चलता है कि यार कौन नहीं है आज, क्यों नहीं है, तो उसका हम रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं. हम मेजर्स जो भी गवर्नमेंट ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ ये, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से मेजर्स है. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन. सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड स्पेसिफिक स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका नंबर काउंट कर रहे हैं. एंड व्हाट वी हैव रियलाइज इज ओवर द इयर्स न्यूज़पेपर में देयर हैज बीन न्यूज आर्टिकल्स की, और बहुत सारे स्पीशीज का हम सेंसस करते हैं. एंड यूपीएससी इज आस्क्ड क्वेश्चंस. हमने टाइगर सेंसस पर क्वेश्चन आया है, राइनो पर क्वेश्चन आया है, मल्टीपल स्पीशीज पर, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स. तो हम जब स्टैटिक पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, सेंसस भी पढ़ लिया हमने, लेकिन अगर हम इसको करंट के साथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगा. आपने एक जगह सेंसस देख लिया और एक स्टैटिक पार्ट में एक जगह पॉपुलेशन पढ़ लिया और एक जगह करंट अफेयर्स में आपने क्या कर लिया, सेंसस पढ़ लिया, तो लिंक नहीं कर पाओगे. एंड हम जब आप टॉपिक्स देखेंगे वील अंडरस्टैंड कि हम कितना, जब हम स्पेसिफिक स्पीशीज का सेंसस देखते हैं तो उस स्पीशीज को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे. हम जब करंट अफेयर्स के लेक्चर देखेंगे, जैसे राइनो का हम सेंसस क्यों इसमें अभी कवर नहीं कर रहे, क्योंकि राइनो का हम करंट अफेयर्स में कवर कर रहे हैं. टाइगर का क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम टाइगर जब कवर कर रहे थे करंट अफेयर्स में, हमने टाइगर्स का सेंसस तभी कवर कर लिया. लेकिन यहां आपको आइडिया आएगा कि हम किस तरीके से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. जब मैं न्यूज आर्टिकल्स देख रहा था, एंड ऑन 10th of August व्हाट वी हैव इज लायन डे. लायन डे होता है 10th of August में. एंड इन PIB ऑल्सो व्हाट वी रियलाइज इज, जब मैं लायन पढ़ रहा था, लायन के बारे में रिसर्च कर रहा था, देयर वाज आर्टिकल्स एंड PM मोदी ऑल्सो रिटेरेटेड कि यार हर, मतलब लायंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन हमारा गिर रीजन में है, एंड गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट लायन. तो लायन का जब मैं ये PIB आर्टिकल देख रहा था, तो हियर आल्सो देयर केम एन व्हाट इज इट, लायन पॉपुलेशन पर एक इंपॉर्टेंट डेटा आया. जैसे मैंने बताया, लायन सेंसस कब होता है, एवरी 5 years होता है. 5 years होता है, 5 years होता है. तो व्हाट वी हैड इज 2010 में था, 15 में था एंड 20 में था. तो नेक्स्ट 2025 में होने वाला. तो एटलीस्ट यू शुड नो. अब पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 3 years, लास्ट 3 सेंसस बढ़ रहा है. तो दिस वुड बी अ क्वेश्चन कि पॉपुलेशन ऑफ लायन कम हो रहा है, बढ़ रहा है. तो इट हैज बीन 674, ये एस्टिमेट है ऑफ लायन. ठीक है, ठीक है. अब लायन की जब हम बात करते हैं, तो ये एशियाटिक लायन का सेंसस कहां कंडक्ट होता है, ये गुजरात में होगा, क्योंकि मोस्ट एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात में, रन ऑफ गिर रीजन में यू विल हैव एशियाटिक लायंस. द फर्स्ट लायन सेंसस वाज कंडक्टेड बाय नवाब ऑफ जूनागढ़ इन 1936 एंड 1965 से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्ट्स लायन सेंसस एवरी 5 years. ठीक है, ठीक है, एवरी 5 years. 2020 में लेटेस्ट हुआ था, 2025 में नेक्स्ट लायन सेंसस होने वाला है. अब इसमें मेथड कौन सा होता है लायन सेंसस में, क्योंकि यूपीएससी जिस डेप्थ में पूछ रहा है एंड द टॉपिक्स PIB में जितने डेप्थ में दिया है, यहाँ ब्लॉक काउंटिंग मेथड से व्हाट वी हैव इज दिस
block counting method conduct किया जाता है for lion census. So basically what happens is the census enumerator जो भी count कर रहे हैं lions को, they are stationed near a water point within a designated block. तो various blocks में वो area divide किया है, every block के लिए एक enumerator होता है, वो खड़ा रहता है जहाँ water availability है, and in next 24 hours how many lions come in that block वो check करता है and count करता है, and based on this हम एक estimation निकालते हैं. तो block counting method आपको पता चाहिए. अब बेसिकली जब भी हम lion पढ़ रहे हो तो आपको पता चाहिए lion का एक मेटा पॉपुलेशन है, मेटा पॉपुलेशन. तो ये कॉन्सेप्ट जब भी lion पढ़ रहे हो, क्योंकि lion एक इंपॉर्टेंट एनिमल है, एक ही इज नोन एज किंग ऑफ द जंगल, जंगल किंग बोलते हैं इसको. एंड इट्स मतलब एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में है, सिर्फ इंडिया में है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए, सिर्फ इंडिया में है. तो ये एक इंपॉर्टेंट एनिमल है जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है. एंड यूपीएससी इज नोन टू आस्क क्वेश्चंस ऑन स्पीशीज. तो हम जब लायन का सेंसस देख रहे हैं तो वी लुक इनटू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लायन. हम सिर्फ नहीं कि यार लायन का ब्लॉक काउंटिंग मेथड है एवरी 5 ईयर से खत्म हो गया, इतना नहीं देखें, हम पूरा लायन कवर करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली लायन का है व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज मेटा पॉपुलेशन. तो मेटा पॉपुलेशन मतलब क्या है? व्हाट वी हैव सीन इज हमारे पास एक लायन का कोर एरिया है, core area, and this is the source of all the lion population, and there is certain satellite area jahan lion goes and visits some of the population. There is certain pockets of lion which are there apart from this core area. Isko hum satellite population bolte hain, satellite population. So this is basically a meta population. What we have is source and sink of lion. So what we have is what do you say, ठीक है. Where meta population क्या बोलता है? There is a core area of lion and there is a satellite areas of lion. Core area of lion is where actually सारे मतलब जो source of lions है, most of the source of lions जहां से lions आ रहे हैं, that is a core area. ये core area है and there are satellite area. इस form of animal distribution को हम meta population बोलते हैं, where there is a source population and there is a satellite population. Satellite is they go in a surrounding area and they stay there, and then you have there's a group of lions there. So with respect to lions, what we have seen is there's a meta population concept where there's a source population and there's a satellite population. ठीक है. तो basically इसको हम satellite population also act as a sink. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. अब जहां हमारा टोटल टाइगर लायंस है, इसको हम गिर कंजर्वेशन एरिया बोलते हैं. ठीक है, गिर कंजर्वेशन एरिया. तो गिर कंजर्वेशन एरिया में the core population and the satellite population are together known as गिर कंजर्वेशन एरिया. गिर कंजर्वेशन एरिया हम इसको बोलते हैं. अब गिर कंजर्वेशन एरिया में जो कोर पॉपुलेशन है, जो कोर एरिया है, हम इसको बोलते हैं गिर प्रोटेक्टेड एरिया. गिर प्रोटेक्टेड एरिया जो कोर एरिया है, एंड जो सराउंडिंग एरिया है हम उसके साथ हम उसको बोलते हैं गिर कंजर्वेशन एरिया. तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गिर कंजर्वेशन एरिया जिसमें सब कुछ आता है, एंड गिर प्रोटेक्टेड एरिया जहां सिर्फ कोर पॉपुलेशन जहां रहता है टाइगर्स, इसको हम गिर प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं. अब गिर प्रोटेक्टेड एरिया में वी हैव गिर नेशनल पार्क एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. तो ये जो पार्ट हो गया, जो कोर पार्ट है, यहां अगर आप नोटिस करोगे, दिस इज गिर national park, and this is what is Gir Wildlife Sanctuary. This is actually the Gir protected area. Gir protected area में दो है, and Gir conservation area में you have this satellite population जिसमें पनिया wildlife sanctuary हो गया, मिथिला wildlife sanctuary हो गया, गिरनार wildlife sanctuary हो गया. And apart from that, now what we have seen is certain lions have been transferred to Barda wildlife sanctuary. ये बताऊंगा कहाँ है. And you have agro pastoral landscape जो connecting part है, वो भी are part of satellite habitat. ठीक है. So basically Gir protected area is the core aspect, and उसके अराउंड अगर हम सैटेलाइट पॉपुलेशन भी कंसिडर करें, इसको गिर कंजर्वेशन एरिया बोलते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है. एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन वेयर यू हैव कोर पॉपुलेशन एंड सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड स्पीशीज व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर, व्हिच आर कनेक्टेड. सो दीज आर ऑल कनेक्टेड, दीज स्पीशीज, दीज एरियाज आर कनेक्टेड. अगर हम देखेंगे, अगर आप यहां देखोगे, यू हैव पनिया सेंचुरी कहां है? क्लोज टू द गिर प्रोटेक्टेड एरिया. यू हैव मिथिला सेंचुरी, यू हैव गिरनार सेंचुरी. ठीक है. तो दीज आर ऑल व्हाट आर पार्ट ऑफ गिर कंजर्वेशन एरिया. गिर कंजर्वेशन एरिया. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. अब there was news articles with respect to this Gir National Park. What government has notified is eco-sensitive zone around protected areas. So what government has notified is
5 to 10 kilometers area around every protected area has to be kept as a buffer area. हम इसको नाम देंगे eco sensitive zones देंगे, where certain activities are restricted, allowed. ऐसा नहीं है कि completely all activities are restricted. तो जितना भी गिर protected area है, अगर ये हमारा गिर नेशनल पार्क है, इसके अराउंड हम क्या करेंगे, एक सर्कमफरेंस बनाएंगे 5 to 10 kilometers का, where certain activities would be allowed, certain activities would be prohibited, certain activities would be regulated. तो ये हो गया हमारा बफर जोन. इसको हम बफर जोन भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा व्हाट यू से इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं. तो गवर्नमेंट हैड सेड दैट एवरी प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया हैज टू हैव अ इको सेंसिटिव जोन. ठीक है, तो ये जो गिर नेशनल पार्क है, इट इज बेसिकली जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है. जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता चाहिए. एंड यहाँ किस टाइप के फॉरेस्ट है आपको पता चाहिए. गिर नेशनल पार्क में यू हैव ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है. आपने देखा होगा, इट इज सर्टन थोड़ा सा मेनलैंड में आता है एंड रेनफॉल कम है. तो यू विल फाइंड दिस गुजरात का रीजन है, गिर रीजन है, वेयर देयर इज लो रेनफॉल. अगर आप देखोगे तो यहाँ what we have seen is dry deciduous forest है. and majorly यहाँ teak, acacia, jamun trees हैं. acacia, jamun majorly is you have trees या इसका flora है. fauna में you have Asiatic lions, गिर है, you have leopard, सांबर, चीतल, नीलगाय. इस टाइप के एनिमल्स गिर नेशनल पार्क में है. तो ये भी आपको साइड बाय साइड गिर नेशनल पार्क कहाँ है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है. बेसिकली व्हाट वी हैव इज अ ग्रेटर गिर सेंचुरी के अंदर what we have is गिर नेशनल पार्क. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है. तो गिर हमारा जो सेंचुरी है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ बिगर एरिया कंपेयर टू गिर नेशनल पार्क. जो अंदर का एरिया है दैट इज गिर नेशनल पार्क. तो ये जानना जरूरी है. एंड गिर नेशनल पार्क इज जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में. व्हाट वी हैव इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एशियाटिक लायंस है, नीलगाय है. ये सारे एनिमल्स वहां मिल रहे हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर न्यूज आर्टिकल देखोगे, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो न्यूज. व्हाट वाज फाउंड. क्यों ले रहा हूं, क्योंकि नवंबर का न्यूज है 2024 का. Why it is trying to tell you is what we have seen is the vegetation is drying up in this area. अब गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, at least you should know where it is. It is not directly linked to the हमारा गिर प्रोटेक्टेड एरिया, बट इट्स ऑन द नॉर्दर्न साइड. तो ये गिरनार सेंचुरी भी एटलीस्ट आपको पता चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट इज व्हाट वी थॉट वाज कि all the lions are in the Gir region. Suppose tomorrow there is a virus which comes in, there is a pandemic, sudden there is flooding or any calamities, natural calamity happen, or there is an infection. What would happen is there would be sudden disappearance of all the lions because they would all be vulnerable. So tomorrow there is a virus. Just humans when we had coronavirus, there is tomorrow there is a virus which affects the lions. What would happen is all the lions would die and it would go extinct. Already endangered है. IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है. अगर वो मर जाते हैं तो क्या होगा, सारे निकल जाएंगे. तो व्हाट वी थॉट वाज वी लॉन्च एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम एंड इट वाज सेड दैट दे वुड बी ट्रांसफर्ड टू कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी and it was agreed by government of India and Madhya Pradesh government also agreed. Secondly, but what happened was Gujarat government, even after Supreme Court's judgment, Supreme Court also said ki we have to transfer lion to some certain other place to have as a backup on an insurance as or to conserve lions in a long term perspective, say, because if there is certain calamities everyone would die. So even when Supreme Court had directed, Gujarat government did not agree, saying that lions are part of their culture and we cannot transfer lion to any other state. So this is basically a case going on, and this project was initially launched by government of India, where it identified a location, Kuno Wildlife Sanctuary, where they thought to transfer lions, considering the similar ecosystem in Kuno compared to the Gir, similar to Gir National Park. But it did not happen. But it was said that it was agreed that though will not transferred in it will not transferred in Madhya Pradesh, but will transferred in Barda. A Barda sanctuary है. अगर आप देखोगे Barda Wildlife Sanctuary, अगर आप ये नोटिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा. तो so basically this Barda Wildlife Sanctuary is close to Gir National Park. So it was said that we'll transfer. There was news article that 40 lions were transferred to Barda Wildlife Sanctuary. ठीक है. जब भी हम लायंस पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो दैट, मैं लायंस के बारे में पढ़ रहा था, डाउन टू अर्थ में इट हैड मेंशन कि जो दिस एरिया इज बेसिकली आल्सो रन ऑफ कच्छ एरिया आता है, एंड इट सेड दैट दिस बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सॉल्ट फार्मिंग जहां हो रही है, देयर सर्टेन कम्युनिटीज बीइंग अफेक्टेड. तो वहां
what I read through is there's a community which have played an active role in the conservation of lion, that is Maldhari community. So basically they have a traditional knowledge with respect to conservation of Asiatic lion, and they've played an active role in the conservation of lions in India. तो जब भी क्वेश्चन आएगा where are these Maldhari community are there, these are present in the Gir region and they have a strong association with environment and wildlife in that region, and they have played an active role. Apart from that, this Run of Kutch also has an important another community, that is Agaria community. These are nomadic and semi-denotified tribes है. These are not linked to the lions, but उसी region में these are salt farming community which are present in Run of Kutch, and it was said that because of this excessive farming which is happening, salt farming in the Run of Kutch, these communities are being affected. So Agaria are nomadic and denotified tribes which are present in Run of Kutch. जो डाउन टू अर्थ का आर्टिकल पढ़ रहा था वहीं इस कम्युनिटी के बारे में था, तो आई थॉट कि एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दिस कम्युनिटी. दे आर प्रेजेंट इन रन ऑफ कच्छ, नोमैडिक ट्राइब है, सॉल्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व थे. अब क्या हो रहा है, कमर्शियल लेवल पर बहुत एक्सेसिव सॉल्ट फार्मिंग हो रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के बारे में एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज में था. जब मैं वो मालधारी कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहा था तब भी, या कच्छ रीजन के बारे में पढ़ रहा था, रन ऑफ कच्छ के बारे में, तो देयर वाज अ मेंशन ऑफ दिस अगरिया कम्युनिटी. नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब है, सॉल्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व थे इन लिटिल रन ऑफ कच्छ. ठीक है, नेक्स्ट इज, जब हम लायंस पढ़ रहे हैं तो लायन प्रोटेक्शन के लिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च प्रोजेक्ट लायन. अब प्रोजेक्ट लायन के अंडर हम क्या कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी हम लायन कंसिडर कर रहे हैं, तो लायन का बारे में पता चाहिए, क्योंकि हम सेंसेक्स से स्टार्ट किया, हमने लायन का सेंसेक्स देखा, हमने लायन के बेसिक पार्ट देखे, हमने लायन प्रोजेक्ट लायन भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर पर भी पीवाईक्यूज आए हैं. तो प्रोजेक्ट लायन में एम क्या है, ऑब्जेक्टिव इज, फर्स्ट इज टू रिड्यूस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड इज हैबिटेट डेवलप करना है, उसका हैबिटेट जो लायन का हैबिटेट है दैट हैज टू बी डेवलप, वी हैव टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन द मैनेजमेंट ऑफ लायन, एंड लास्ट इज डिसीज मैनेजमेंट करना है. व्हाई डिसीज मैनेजमेंट, क्योंकि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, सीडीवी बोलते हैं इसे, सीडीवी, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस इज अ मेजर वायरस व्हिच इज प्रेजेंट or which the lions are facing, and this could cause this is a cause of worry, where if all the lions are affected by this canine distemper virus, what would happen is they would be vulnerable. एक important part आपको पता चाहिए. As I said, यहाँ अगर हम क्या करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं. टेक्नोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं, विल बी यूजिंग रेडियो कॉलरिंग करने वाले हैं, कैमरा ट्रैप्स लगाने वाले हैं. कैमरा ट्रैप्स विल बी हैविंग मल्टीपल कैमरास टू लुक इनटू लायंस, एंड उसके काउंटिंग में इंपॉर्टेंट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या करने वाले हैं, वी आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड 6 लोकेशंस जहां हम लायन को what will be what you say relocation करने वाले हैं अंडर प्रोजेक्ट लायन. तो 6 are these are possible locations, ऐसे नहीं कि हम यहाँ करने ही वाले, पॉसिबल लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट टाइगर, कि दिस लोकेशंस कुड बी एरियाज जहां हम लायन को रिलोकेट कर सकते हैं. इसमें कौन से नाम है, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, यू हैव सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, यू हैव मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, यू हैव गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, यू हैव कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, एंड जेसन बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात. तो दीज आर द 6 लोकेशंस आई गेस, वेयर व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी एंश्योरिंग कि हम लायंस को यहाँ ट्रांसलोकेट करें. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लायन. तो ठीक है, तो ये एक पार्ट आपको पता चल गया, अब क्यों कर रहे हैं मैंने फिर से बताया. मैंने एक तो चीज बताया कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है व्हिच कैन अफेक्ट ऑल द लायंस टुगेदर, एंड सेकेंडली क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज फाउंड दैट देयर इज जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ दिस लायंस आर वेरी लो. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी लो है मतलब क्या हो गया, इफ देयर इज सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, या इफ देयर इज सर्टेन एक्सटर्नल कंडीशन व्हिच हैपेंस, व्हाट हैपेंस इज एवरी लायन और जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ दिस लायंस आर वेरी लो, तो दे डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव जेनेटिक मटेरियल टू अडैप्ट टू एनी एक्सटर्नल प्रेशर. सो टुमारो सडनली द टेम्परेचर ऑफ गिर रीजन rises by 2 degrees, and as most of the lions have similar genetic material, they do not have any mutation on alternative genetic material to adapt to the new temperature. तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब जेनेटिक मटेरियल सेम है, एंड इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक जेनेटिक टाइप ऑफ लायंस, every population would be affected. So tomorrow if we have multiple genetic diversity बहुत है, so imagine there's suddenly a temperature rise, so these few lions would be, what would happen is they would not be able to adapt. But यहाँ diversity है, ये जो lions है ना ये adapt कर चुके हैं टू द राइजिंग टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये पॉपुलेशन कंटिन्यू रहेगा, सस्टेन रहेगा. अगर डाइवर्सिटी नहीं है, इफ ऑल द लायंस आर ऑफ सिमिलर जेनेटिक नेचर,
तो क्या होगा, सारे एक साथ क्या होगा, what would happen is everyone would vanish in one go. अगर डाइवर्सिटी है तो टुमारो अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, there's certain virus, so few of the lions are adapted or they have certain genetic material which inherently gives them immunity. अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, जब डाइवर्सिटी होता है तो क्या होता है, इट हैज अ हायर पोटेंशियल टू सर्वाइव इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको जानना जरूरी है. तो यहाँ जो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उन्होंने जब टेस्ट किया लायंस का डीएनए, दे फाउंड दैट इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है. अब इस वजह से इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि क्या होना चाहिए, we have to transfer these lions to multiple location so that in case of any calamities we are able to protect them. तो reason पूछ सकता है यूपीएससी एमसीक्यू में, why we have to have ट्रांसलोकेशन ऑफ लायंस, क्यों नेसेसरी है. तो एक तो रीजन हो सकता है कि एक्सटर्नल, इफ देयर कुड बी एनी कैलेमिटी, वायरस या फिर लो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ लायंस, तो ये भी एक पार्ट हो सकता है. तो ये जानना जरूरी है. अब व्हाई यू शुड नो, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन एंड एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था हमारे यहाँ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लायन, दैट वाज एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. इट वाज फ्रॉम 2018 to 21 एंड यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द लास्ट फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इन द इकोसिस्टम. तो अल्टीमेटली उनका हैबिटेट डेवलप करना. एंड दिस प्रोजेक्ट वाज पार्ट ऑफ, सो जो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में क्या एम फोकस कर रहे थे, हमारे इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना. अब ये जो प्रोग्राम था एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज अ पार्ट ऑफ एन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था ऑफ MOEF, that was development of wildlife habitat, integrated development of wildlife habitat. एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है MOEF का. उस प्रोग्राम के अंडर वी हैड दिस एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. तो बेसिकली अगर हम न्यूज आर्टिकल देखोगे, रिसेंटली इट वाज सेड दैट दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं. 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एंड वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट. तो ये प्रोग्राम न्यूज में था. अगर आप देखोगे, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है विच यू शुड नो. इस स्कीम के अंडर व्हाट वी हैव इज, हमने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था. ठीक है. तो अब ये स्कीम जानना जरूरी है क्योंकि ये न्यूज में है, 2024 का ही न्यूज है, सितंबर का न्यूज है, एंड इट इज अ हाई व्हाट यू से, इस पीरियड में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं. PIB का न्यूज आर्टिकल है. तो ये प्रोग्राम के बारे में पता चाहिए. बेसिकली इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. जितने भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मतलब क्या है, जहां हमारे वाइल्ड स्पीशीज रहती है, दैट इज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. इसमें कौन से एरियाज हो सकते हैं, सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज. प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए हमारे, उसके सस्टेनेंस के लिए, उसके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डेवलप करने के लिए वी हैव, और या टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्शन के लिए, तो या उसके टाइगर रिजर्व्स के डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देंगे. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज. सो देयर आर सर्टेन वाइल्ड लाइफ व्हिच इज अपार्ट, व्हिच आर नॉट देयर इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, वो बाहर रहते हैं. तो ऐसे एरियाज, ऐसे हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें सपोर्ट है. एंड लास्ट इज recovery program for critically endangered species. So there are certain species which are important, which are critically endangered, and उसके protection के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट साइड दैट वी हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा अमाउंट. तो ऐसे स्पीशीज के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव अ रिकवरी प्रोग्राम. तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि व्हाट यू डू इज यू लॉन्च अ ब्रीडिंग प्रोग्राम, आप कंजर्वेशन सेंटर लॉन्च करो फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया. जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, नाम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लेकिन एंडेंजर्ड स्पीशीज भी इसमें इंक्लूडेड है. सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज उसको भी सपोर्ट करते हैं, एंड सेकेंडली हम रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज ये भी करते हैं. तो यहाँ हैबिटेट भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. मेजरली फोकस रहेगा हैबिटेट पर. हैबिटेट इज जो जहां वो एनिमल रहते हैं, दैट इज हैबिटेट. द एक्चुअल लोकेशन वेयर द एनिमल लिव्स इज नोन एज हैबिटेट. तो दैट इज हैबिटेट प्रोटेक्शन. जब हम उसके इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करेंगे,
हैबिटेट प्रोटेक्ट करना मतलब इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना. If we are able to maintain that habitat, what would happen is indirectly the animals would survive. So this is a flagship program which is launched by MOEF. It has been continued till 15th Finance Commission ने बोला है कि we'll be continuing this program. And secondly, it was said that this program is the flagship program of MOEF, जहां हम 3 कंपोनेंट है जो आपको पता चाहिए. इसके 3 कंपोनेंट है. ठीक है, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. अब जब हम लायन देख रहा था, अगर ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये PIB से लिया है, तो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. ये PIB जाओ करोगे 2020 जो रिसेंट आर्टिकल था विद रिस्पेक्ट टू PIB, वहां PIB ने कुछ इंपॉर्टेंट लायन के बारे में चीजें एक्सप्लेन की है. ठीक है, चलेगा. अब क्या चीजें एक्सप्लेन की है, यहां बोला है लायन लिव्स इन लार्ज ग्रुप कॉल्ड प्राइड. तो यहां लायन लिव्स इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड एज प्राइड. ठीक है, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. यहां और एक चीज बोली है, लायन इज नोन एज किंग ऑफ जंगल्स एंड लिव्स इन ग्रासलैंड्स एंड प्लेन्स. ये जंगल में नहीं रहते हैं, ग्रासलैंड्स एंड प्लेन में रहते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है, ग्रासलैंड में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, नॉट इन जंगल्स. ठीक है, ठीक है. फीमेल लायन एंड देयर सिस्टर्स लिव टुगेदर व्हाइल मेल स्टे इन अ प्राइड अंटिल दे रीच मेच्योरिटी. तो मेल एक साथ रहता है, फीमेल एक साथ रहता है. ये एक इंपॉर्टेंट है. लायन रोर कैन बी हर्ड अप टू 5 miles अवे, क्लोज टू 10 किलोमीटर के आसपास. तो जब वो रोर करते हैं तो इट कैन बी रीच्ड अप टू 5 miles. तो उनका लोन लायन स्पेंड क्लोज टू 20 hours रेस्टिंग है एंड स्लीपिंग है. तो मोस्टली दे रेस्ट 20 hours वो रेस्टिंग एंड स्लीपिंग में है. मेल लायन what they do is they patrol their area रेगुलरली. देयर टेरिटरीज उनमें मार्क होती है, वो रेगुलरली उसको ये करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं. लायन प्रेफर हंटिंग एट नाइट एंड मेकिंग इजियर टू कैच द प्रे. तो हंटिंग नाइट में करते हैं. सो दिस इज अ फन फैक्ट एंड यूपीएससी इज नोन टू आस्क क्वेश्चन ऑन अ सिमिलर लाइंस. जिस तरीके के स्पीशीज पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एटलीस्ट लायन के बारे में इंपॉर्टेंट एनिमल है, जानना जरूरी है. ठीक है. अब जब हम लायन की बात करते हैं, यू हैव मेल एंड फीमेल लायन. मेल लायन टेरिटरी क्या करते हैं, मेजरली क्या करते हैं, दे रोम इन अ प्राइड ग्रुप जिसको बोलते हैं, एंड टेरिटरीज को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. वेयरएज लायनेस क्या करते हैं, दीज आर प्राइमरी हंटर्स एंड केयर गिवर्स फॉर द कब. जो हंट करते हैं मेजरली लायनेस करते हैं, फीमेल करते हैं. एक इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन थ्रू वोकलाइजेशन होता है, रोर से वो कम्युनिकेट करते हैं. मेल एंड फीमेल इस तरीके से डिफरेंस दिखते हैं. तो यू हैव दिस व्हाट यू से एक्स्ट्रा, यू कैन फाइंड द डिफरेंस. देयर इज अ हेयरी स्ट्रक्चर अराउंड द नेक, मेन बोलते हैं इसे. तो दिस इज प्रेजेंट इन मेल लायंस, फीमेल में नहीं होता है. तो डिफरेंस आपको मेल एंड फीमेल का एटलीस्ट जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो याद नहीं करोगे. ठीक है. एंड इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, एंड जो अफ्रीकन लायंस है वो वल्नरेबल. सो यू हैव इन अफ्रीका एंड एशियाटिक लायंस, 2 स्पीशीज है. तो एशियाटिक लायंस इज एंडेंजर्ड, whereas African lion is vulnerable and they're not found anywhere else. So ये एक important है, they're endemic. Asiatic lions are only endemic to India. इंडिया के बाहर कहीं नहीं एशियाटिक लायंस. whereas African lions are found across Africa. हम जो आपने देखा होगा, everyone is going to Kenya, तो वो सवाना रीजन में you'll find what do you say अफ्रीकन लायंस है. ठीक है. अब लायंस क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मैं वो PIB का आर्टिकल पढ़ रहा था, देयर आई फाउंड दैट जब हम लायन की बात करेंगे तो ये लायन का इंपॉर्टेंट रोल कभी आप नोटिस नहीं करोगे. वो क्या करता है, डिसीज कंट्रोल में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल है. कैसे डिसीज कंट्रोल है, व्हाट दे डू इज दे जो भी वीक प्रे है, अगर इमेजिन देयर इज अ डियर हु इज डाइंग बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसीज, उसको क्या करता है, दे टारगेट द वीक एंड वल्नरेबल प्रे. तो इनडायरेक्टली डिसीज कंट्रोल में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो डिसीज कंट्रोल में लायन का एक इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज एन अपेक्स प्रेडेटर एंड इट इज एट द top of the food chain. तो what it does is it maintains ecological balance and population control में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो अगर if we do not have lion, क्या होगा, herbivores बहुत बढ़ जाएंगे. अगर herbivores बढ़ जाएंगे तो वो सडनली क्या करेंगे, what they will do is they'll what do you say, जो भी हमारा plants है, grasses है, उसको there will be excessive consumption and effectively the entire ecosystem would be affected. तो ये avoid करने के लिए we have to have ecological balance maintain करने के लिए, population control of the herbivores maintain करने के लिए, deers के, तो what we have is lions. So lions play an important role. ठीक है, ठीक है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको what do you say पता चाहिए. ठीक है. आपको लगेगा कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं. हमने स्टार्ट किया एनवायरमेंट से, हमने स्टार्ट किया फिर उसके बाद इकोसिस्टम देखा, हमने हायरार्की देखा, हायरार्की में पॉपुलेशन देखा, हमने बायोम का डेफिनेशन देखा. अगर किसी ने बायोम का डेफिनेशन पूछ लिया तो बता देना, इट इज अ बायोजियोग्राफिकल रीजन जहां कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर बीन what is it characterized by the climatic condition. तो वहां के फ्लोरा एंड फाउना इज कैरेक्टराइज्ड बाय
द एडेप्टेशन और द फीचर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो जितने क्लाइमेटिक जोन है उसी फॉर्मेट में व्हाट वी हैव इज बायोम्स होते हैं। इट इज अ लार्ज बायोजियोग्राफिक रीजन, मल्टी कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। हमने फिर देखा कि लायन का हम कर रहे हैं, एवरी 5 years कर रहे हैं। 5 years कहाँ हो रहा है? गुजरात में। वी हैव गुजरात गिर कंजर्वेशन एरिया विच हैज कोर पॉपुलेशन एंड द सैटेलाइट पॉपुलेशन। गिर प्रोटेक्टेड एरिया ओनली, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क भी न्यूज में था, गिरना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था। व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट लायन, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने वो बताया। कैनेडियन डिस्टेंपर वायरस एंड सेकेंडली हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम है, ये भी देख लिया हमने। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन देखा 2020 में लॉन्च किया। उसके पहले हमारे पास एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था जो नहीं हुआ है सक्सेसफुल। अभी सिर्फ लायन सिर्फ गिर एरिया में इन गुजरात है। अब बारडा में हमने साइड बाय साइड इसको ट्रांसफर कर दिया है। हमने प्रोजेक्ट लायन के अंडर 6 एरियाज हमने आइडेंटिफाई किया है जहां हम लायन ट्रांसफर करेंगे। हमने उसके बाद देखा कि हमारे पास एक और एक प्रोग्राम था, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम, विच वाज पार्ट ऑफ, हम एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम में उनका हैबिटेट प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब हैबिटेट प्रोटेक्ट कर रहे थे तो ये प्रोग्राम किसके अंडर आ गया? इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके अंडर आया। उसी के अंडर देयर इज अ सब कंपोनेंट इंटीग्रेटेड, जहां हम क्या कर रहे थे, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था 2018 से 21 तक। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आपको जानना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कौन सा प्रोग्राम है। हमने ये भी देखा कि लायंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पूछा था डिसीज कंट्रोल में, तो यू विल अंडरस्टैंड यार कैसे डिसीज कंट्रोल में। हमने देखा कि एशियाटिक लायंस एंड उसके फीचर्स देख लिए। लायंस मेल what do you say, they move together and female move together, मेल का रोल क्या है, फीमेल का रोल क्या है, ये सारा PIB से है। यू सर्च दिस एंड यू विल गेट PIB लायन सर्च करना एंड यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ एवरीथिंग इज पार्ट इज गिवन इन PIB, एवरीथिंग। अगर PIB इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट है? कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली PIB से आ रहा है। सो ये जानना जरूरी है। वोकलाइजेशन, रोर हमने देखा कि रोर करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, समझ आया। लायंस कवर्ड है। इसके बाद लायन पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत होना ही नहीं है, गलत होना ही नहीं। यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक कि क्या रोल है लायन का, क्या रोल है लायन का, डिफरेंस। व्हाई आई एम टेकिंग दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये प्रोग्राम क्यों लेने की जरूरत पड़ी मुझे? रीजन इज, ये न्यूज में है। अगर आप PIB पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि यार ये न्यूज में है that the government has approved continuation of development, wildlife development scheme. Wildlife development scheme मतलब कौन सा ये स्कीम है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये स्कीम का कंटिन्यूएशन है। यहां अगर देखोगे तो ये आपको पता चले। सो इसमें 3 कंपोनेंट हमने देख लिया। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, न्यूज आर्टिकल में था दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एसेस इज ऑल्सो, गुजरात गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू काउंट। कब का न्यूज आर्टिकल है? अगर आप देखोगे दिस इज अक्टूबर 2024, तो डेफिनेटली 2024 का न्यूज है। पता चाहिए कि गुजरात ने क्या कर दिया, जो वाइल्ड एसेस है उनका भी हमने क्या कर दिया है, नंबर काउंट कर दिया है। अब यहां अगर देखोगे वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट है, मैंने जैसे बोला ना असेसमेंट रहेगा या एस्टिमेट है, या सेंसस नहीं बोला है। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज कैरिड आउट द 10th such thing. It is done by direct count method. These are wild asses and majorly अगर हम इसका देखेंगे, these are solitary रहते हैं। Secondly, adults have horns है। and majorly पहले ये सेंट्रल वेस्टर्न मतलब इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में दिखते थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में ही मिलते हैं। दे प्रेफर डेजर्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यू विल फाइंड वाइल्ड एसेस। IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है इनका, नियर थ्रेटन्ड है एंड शेड्यूल 1 में आते हैं। तो दिस इज वाइल्ड, लिटिल वाइल्ड जो हमारा वाइल्ड एस सेंचुरी है विच इज इन लिटिल रन, आपको पता चाहिए लिटिल रन ऑफ कच्छ में है। व्हाट वी हैव इज वाइल्ड एस सेंचुरी। तो these are important, these animals are, what do you say, these animals are important। ये क्यों important है? बिकॉज ये सीड डिस्पर्सल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सीड डिस्पर्सल में, इसलिए वाइल्ड एसेस इतना इंपॉर्टेंट है। नियर थ्रेटन्ड है, आपको पता चाहिए। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? यू शुड नो प्रेजेंटली। सिर्फ अगर क्वेश्चन आ सकता है इंडियन वाइल्ड एसेस कहाँ मिलते हैं, तो दीज आर ओनली फाउंड इन रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स प्रेफर करते हैं, आपको पता चाहिए। ठीक है, कहाँ है लोकेशन? ग्रेटर रन एंड दिस इज लिटिल रन, दिस इज ग्रेटर रन एंड दिस इज लिटिल रन। तो ये आपको एटलीस्ट आपको पता चाहिए। देयर यू विल फाइंड वाइल्ड एसेस एंड यू हैव इज लिटिल रन ऑफ कच्छ में यू हैव इज
वाइल्ड एज सेंचुरी, वाइल्ड एज सेंचुरी। सॉलिटेरी है, मेल इसमें दे हैव हॉर्न्स, ये भी होता है। तो इतना जानना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड एस। ये स्पीशीज भी कवर हो गया, हमारा पता भी चल गया कि गुजरात ने कवर किया था, एंड हमें भी ये भी पता चला कि डायरेक्ट काउंटिंग मेथड से किया था। 10th एस्टिमेट था, मैंने जैसे बोला इट इज नेवर इट इज सेड सेंसेक्स, इट इज सेड एस्टिमेट और एस्टिमेट, क्योंकि सम वी एक्चुअली नॉट काउंटिंग ये गणेश है या रमेश है या सुरेश है, ऐसे इस नाम से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अब एज आई सेड व्हाई वी आर कवरिंग वाइल्ड एसेस, ये आपको पता चाहिए क्योंकि गुजरात ने रिसेंटली कंडक्टेड 10th वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट, डायरेक्ट काउंट नियर थ्रेटेंड है। रन ऑफ कच्छ कहाँ लोकेशन मैंने बताया, सॉलिटरी रहते हैं, शाय है, लो डेंसिटी में मिलते हैं। कितना नंबर है जानना जरूरी नहीं है, लेकिन 7000 दे वुड नॉट आस्क। ठीक है, ये देख लिया। मूविंग फॉरवर्ड, जब हमने लायंस देख लिया, हमने उसके बाद वाइल्ड एस देखे, इंडियन वाइल्ड एस हमने, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है न्यूज आर्टिकल्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वी हैड फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ इंडियन स्नो लेपर्ड एंड द काउंट वाज 718। ठीक है। सेकेंडली, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू। तो स्नो लेपर्ड is also an important animal which is present in the Himalayan region, and 2024 में it was for the first time what we did was survey of snow leopard in India। first time हमने survey किया था, and we look into, हमने guess आया कि कितना population है। इसके पहले we did not have an estimation कि कितना population है snow leopards का। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एंड दिस न्यूज आर्टिकल था स्नो लेपर्ड पर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। तो ये इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23rd अक्टूबर। एंड बेसिकली व्हाई 23rd अक्टूबर is celebrated as International Snow Leopard Day is because what we signed was Bishkek Declaration on Snow Leopard Conservation. It was signed by 12 snow leopard range countries. So basically snow leopards are found in 12 countries, and all of these came together in 2013 and signed a declaration called as Bishkek Declaration. It was said that we'll be focusing on conservation of snow leopard, we'll be collaborating, we'll be conserving, we'll be protecting their habitat. So this was the importance why 23rd October is celebrated as World Snow Leopard Day, World Snow Leopard Day। ठीक है। Moving forward, news articles में there was articles with respect to that for the first time what we did was there was a Sensex। यहाँ भी देखोगे तो मैंने Sensex है, but it has been, what do you say, it has been vaguely used, Sensex vaguely used किया जाता है word, basically it's an estimation। what we looked into is जितने भी हमारे snow leopard states and union territories है, what we did was we did a extensive survey, and यहाँ you will find snow leopard in Jammu Kashmir union territory, Ladakh union territory, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो we have snow leopard across these 4 हिमालयन स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्चुअल एस्टिमेशन हुआ था, जैसे मैंने बोला असेसमेंट या एस्टिमेशन 2 वर्ड यूज होंगे, जो एक्चुअल जो इंडिया में कंडक्ट किया गया था उसका ऑफिशियल नाम था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। असेसमेंट था, इट इज नॉट एक्चुअल सेंसस, इट इज एन असेसमेंट वेयर इट वाज सेड दैट विल बी असेसिंग द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो बेसिकली दिस वाज कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WWF इंडिया, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर, ये तीनों ने मिलकर ये स्नो लेपर्ड असेसमेंट किया था। एंड इट वाज फाउंड के 718 क्लोज टू 718 एक एस्टिमेट दिया था उन्होंने कि इतने स्नो लेपर्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स आर इन लद्दाख, फॉलोड बाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू कश्मीर। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स कहाँ हैं, लद्दाख में है। एंड लद्दाख में यू हैव वन हेमिस नेशनल पार्क व्हिच इज आल्सो नोन एज, हेमिस इज नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट is present in Ladakh and that region has one of the highest snow leopards होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट है। तो स्नो लेपर्ड्स लद्दाख में एंड मेजरली जैसे बोला हेमिस नेशनल पार्क में you have what do you say स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय उत्तराखंड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसका मेथड क्या था विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने ब्लॉक काउंटिंग लाइन में देखा, डायरेक्ट काउंटिंग वाइल्ड लाइफ में देखा। सो जब व्हेन आई वाज रीडिंग आर्टिकल इट वाज सेड दैट इट इज डन थ्रू 2 वेज। फर्स्ट इज इंटरव्यू विद लोकल्स के साथ बात किया, आपको दिखाया क्या स्नो लेपर्ड्स, एंड सेकंड इज थ्रू कैमरा ट्रैप। तो एटलीस्ट फॉर 60 days कैमरा ट्रैप रख के वी ट्राई टू लुक इनटू कि we are able to look into snow leopard or not। तो एक important है। As I told you कि where you find the snow leopards, these are found in central and southern Asia में you will find this, mountainous region में you will be finding snow leopards।
स्नो लेपर्ड्स हैं। अगर हम देखेंगे कौन से 12 रेंज कंट्रीज हैं, तो जितने भी माउंटेनस रीजन है, अगर हमारे हिमालयन स्टेट्स में मिल रहा है तो डेफिनेटली नेपाल भूटान में भी दिखेगा एंड चाइना में भी दिखेगा। तो अगर आप देखोगे इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, नेपाल भूटान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, जहां जहां हिमालयन रीजन एक्सटेंड करता है देयर यूल फाइंड मंगोलिया, Kyrgyzstan, Kazakhstan are the other what do you say states where you will be finding snow leopards. So एक important part है. The extension into Central Asia is there you will find snow leopards. Next is, अब इंडिया में दो साइड में, एक तो है कि वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहाँ मिलता है आपको पता चाहिए। एंड स्नो लेपर्ड पर देयर वाज वन मोर आर्टिकल दैट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर हमने एस्टैब्लिश किया है, एंड दिस स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इज नॉट इन एनी हिमालयन स्टेट, ये जो कंजर्वेशन सेंटर है ये कहाँ है, ये हमारा दार्जिलिंग जू में है। दार्जिलिंग जू कहाँ है? बेसिकली वेस्ट बंगाल में है। इसका दूसरा नाम दार्जिलिंग जू का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। सो देयर वी हैव स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, एंड इट हैज डन अ रिमार्केबल जॉब। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज दिस पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एंड व्हाई इट इज फेमस? इट इज फेमस बिकॉज यहाँ व्हाट वी हैव इज स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम है, एंड स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है विच इज टेकिंग प्लेस इन दिस इंपॉर्टेंट पार्क। जूलॉजिकल पार्क इस दार्जिलिंग जू भी बोलते हैं। देयर यू हैव दिस स्नो लेपर्ड पार्ट। अब जब हम स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं तो आपको पता चाहिए कि स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, एंड ऑल द अदर लेपर्ड्स व्हिच आर फाउंड इन इंडिया, देयर अपार्ट फ्रॉम स्नो लेपर्ड यू हैव टू अदर लेपर्ड्स व्हिच आर फाउंड इन इंडिया। फर्स्ट इज इंडियन लेपर्ड, जो हम मेजरली ग्रासलैंड्स अक्रॉस द इंडिया, हमारे फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स एंड सेमी अर्बन एरिया, here you will find a lot of news articles with respect to leopards trying there's a animal human conflict with respect to leopards being attacking human beings. It is not that they are attacking us, what we have done is we have encroached into their territory. तो ये इंडियन लेपर्ड भी बहुत बार न्यूज में होता है, एंड इसका भी आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। लोकेशन मैंने बताया, दे आर फाउंड इन इंडिया अक्रॉस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। देन वी हैव क्लाउडेड लेपर्ड which is also vulnerable and majorly found in foothills of Himalayas and part of northeast region. Northeast and foothills of Himalaya में what we have is clouded leopards. So ये तीन type of species हमारे leopards इंडिया में मिलते हैं, and clouded leopard में foothills of Himalayas and northeast. अब northeast कैसे याद रखोगे? क्योंकि we have is clouded leopard national park भी है, and this is present in Tripura. तो एक important है, this clouded leopard national park is present in सेप जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के अंडर व्हाट वी हैव इट इज क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क विच इज बेस्ड इन त्रिपुरा। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा तीन टाइप ऑफ लेपर्ड्स हमारे इंडिया में मिलते हैं। Why I am taking species इतना? क्योंकि क्वेश्चंस उस फॉर्मेट में आ रहे हैं, न्यूज में भी है, एंड हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, पॉपुलेशन भी उनकी काउंट हुई है, तो उस फॉर्मेट में देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द स्टैटिक सिलेबस वुड बी कवर्ड। मैं फिर से रिटैरिएट कर रहा हूं क्योंकि सम वुड थिंक यार ये तो करंट अफेयर्स है। करंट एंड स्टैटिक दोनों एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है जहां न्यूज में है, जो स्टैटिक कंपोनेंट न्यूज में वहां से ज्यादा फोकस दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव ब्लैक पैंथर या ब्लैक लेपर्ड भी बोलते हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ सेपरेट स्पीशीज, इट इज अ मेलेनिस्टिक वर्जन, जहां क्या एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से द कलर हैज बीन टर्न इनटू कंप्लीटली ब्लैक। तो ये मेलेनिज्म है, मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स है। दीज आर नॉट सेपरेट स्पीशीज, वी हैव थ्री स्पीशीज, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, तीनों आपको बता दिया। एज आई सेड, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज हमारा कौन सा है? हेमिस है, हेमिस नेशनल पार्क, एंड इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड। इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा था, चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो इन न्यूज, क्योंकि चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी लद्दाख में है, लद्दाख हेनले में है। देयर वी हैव सेट अप डार्क रिजर्व, फर्स्ट डार्क रिजर्व इंडिया। एंड जब ये न्यूज आर्टिकल था, it said that what has happened because of excessive tourism and this activities, this Changtang Wildlife Sanctuary is facing a lot of issues and the animals here are under threat. And Changtang Wildlife Sanctuary, as I said, Ladakh में है, हेनली में है, हेनली वैली में है, हेनली वैली में you will have this Changtang Wildlife Sanctuary, and what we have seen is these animals here. So अगर आप लॉजिकली भी देखोगे, लद्दाख में मैंने बताया स्नो लेपर्ड्स है, here also what you will find is snow leopards. And न्यूज आर्टिकल्स आप पढ़ोगे तो यहाँ बोला गया है बेसिकली ये हिमालयन रीजन में है, लद्दाख रीजन में you have this Changtang Wildlife Sanctuary, and it was said यहाँ animals which are very unique animals which are found in only in Changtang Wildlife Sanctuaries, Palas cat है,
टिबेटियन सैंड फॉक्स है, स्नो लेपर्ड है एंड ब्लैक नेक क्रेन है। ब्लैक नेक क्रेन, ये सारे एनिमल्स चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता चाहिए कि ये एनिमल्स कौन से हैं। यूपीएससी ने इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक नेक क्रेन इंडिया में मिलता है कि नहीं। वाई आई एम टेकिंग दिस इज क्योंकि ये द हिंदू का अगर आप सर्च करोगे देयर यू विल फाइंड दिस चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटलीस्ट कहाँ है, कौन से एनिमल्स है एंड फ्यू ऑफ द एनिमल्स कौन से एंडेमिक है एटलीस्ट ये नहीं पता है। क्योंकि ब्लैक नेक क्रेन पर यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछा है, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि यार पालास कैट अगर पूछ लिया या टिबेटियन सैंड फॉक्स पूछ लिया, आर दे प्रेजेंट इन इंडिया, एटलीस्ट उतना तो पता चाहिए, उतना तो पता चाहिए। क्योंकि जब हम साथ में पढ़ेंगे, चीजें साथ में लिंक करेंगे तो आपको पता चले। अगर चंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, स्नो लेपर्ड तो आपको पता चल गया वल्नरेबल ही है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया, हमने कहाँ कहाँ मिलता है वो भी देख लिया। अब आता है ब्लैक नेक क्रेन। अब ब्लैक नेक क्रेन इज बेसिकली मतलब ये कहाँ मिलता है, ये टिबेटन प्लेट्यू में मिलता है एंड इन इंडिया एंड भूटान में यू विल फाइंड दिस ब्लैक नेक क्रेन एंड इट इज अडॉप्टेड एज अ स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख है, अब यूनियन टेरिटरी है उसका ही है, ठीक है, स्टेट बर्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड, एटलीस्ट ये आपको पता चल गया हिमालयन रीजन में मिलता है, इंडिया में मिलता है, तो इट्स मोर देन इनफ टू नो। नेक्स्ट आता है व्हाट वी हैव इज दिस इज टिबेटियन फॉक्स। टिबेटियन रीजन में मिलता है, लीज कंसर्न है इसका IUCN स्टेटस। एटलीस्ट जब फोटो देखोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ मैं जो एनिमल्स बता रहा हूँ इसमें जो हमारा ये पालास कैट है, इट इज ऑल्सो लीज कंसर्न है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 3 एनिमल्स के बारे में मैंने बताया आपको साइड बाय साइड। एक तो हिमालयन ब्लैक नेक क्रेन। ब्लैक नेक क्रेन कहाँ मैंने बताया, टिबेटियन रीजन में है। सेकेंडली इंडिया एंड भूटान में मिलता है, स्टेट बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, नियर थ्रेटेंड है, IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड, एंड रेस्ट दोनों का लीज कंसर्न है। दैट इज दिस इज टिबेटियन सैंड फॉक्स है एंड दिस इज पालास कैट, ठीक है। बोथ दिस एनिमल्स आर वेरी मतलब अट्रैक्टिव विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखोगे कि बहुत अट्रैक्टिव है, इसके जाके इमेजेस सर्च करना यू विल फाइंड वेरी अट्रैक्टिव। तो व्हाई आई एम टेकिंग दिस इज क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ब्लैक नेक क्रेन कहाँ है तो क्या करोगे, यू विल मेक दैट मिस्टेक, एंडेमिक है या नहीं है। एटलीस्ट जब नाम पता है, सुनोगे 3-4 बार चीजें सुनोगे तो क्या होगा, याद रहेगी चीजें, याद रहेगी। फर्स्ट टाइम में देखो, जैसे एग्जाम नॉलेज का है तो नॉलेज कैसे बढ़ेगा, रिवीजन से बढ़ेगा। लेकिन क्या पढ़ना है अगर वही नहीं पता चला तो किसका रिवीजन करोगे, तो यहां से रिवीजन भी बढ़ेगा। अब जब हम स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं तो यहां 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। एक तो है कि 2 प्रोग्राम जहां आपको एटलीस्ट आपको पता चाहिए कि यार ये प्रोग्राम MOEF की प्रोग्राम है, वेयर दे हैव प्लेड एन एक्टिव रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। वी हैव प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आल्सो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव हिमल संरक्षक। Basically it's a voluntary program for the conservation of snow leopard where voluntary community come together and try to protect snow leopard। ये 2020 से चालू है। तो यहाँ the focus has been on community involvement in the protection of snow leopard। Then we have Secure Himalaya program। तो basically Secure Himalaya is a program of MOEF, UNDP and GEF, funded by GEF, Global Environment Facility। एम क्या था कि हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। अब हिमालयन इकोसिस्टम में वन ऑफ द मेजर एनिमल्स इज स्नो लेपर्ड। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसमें हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिक्योर हिमालय का रोल क्या है, एक तो हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज यहाँ लाइवलीहुड भी इंश्योर करना कि जो हमारे यहाँ जो पीपल रह रहे हैं वी आर एबल टू प्रोवाइड देम लाइवलीहुड अलॉन्ग विद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी तीनों इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ दिस सिक्योर हिमालय प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको पता चाहिए। एक तो है कि हिमल संरक्षक एंड सेकेंड इज सिक्योर हिमालय प्रोग्राम। तो ये दोनों प्रोग्राम के बारे में पता चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एट द ग्लोबल लेवल वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट इज ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ग्लोबल स्नो लेपर्ड प्रोटेक्ट कर दिया, उनके इकोसिस्टम प्रोटेक्ट कर दिया। इस तरीके से याद करो, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। सिर्फ स्नो लेपर्ड को नहीं प्रोटेक्ट करना है, उसकी हैबिटेट एंड इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कब लॉन्च हुआ था, अगेन बिश्केट डिक्लेरेशन जब हुआ था तभी ये लॉन्च हुआ था। 12 स्नो लेपर्ड कंट्रीज और 12 रेंज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट एंड एम था was to secure 20 snow leopard landscape across animal ranges by 2020 and address the threat which are faced by snow leopards। तो उस threats को कम करना है, 20 जो snow leopard landscapes है उसको protect करना है। And here the focus was on government commitment
ensuring that we focus on community involvement, research करना है and international collaboration करना है through this global snow leopard and ecosystem protection program. तो global snow leopard and ecosystem protection program में हम क्या कर रहे हैं? एक तो कर रहे हैं कि snow leopards को protect कर रहे हैं. Secondly, ये कब लॉन्च हुआ था? बिश्केक डिक्लेरेशन जब 2013 में लॉन्च किया गया था, साइन किया गया था बाय 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज, तब ये लॉन्च किया गया था. एंड द एम वाज कि हमें जितने भी 20 लैंडस्केप्स है, स्नो लेपर्ड लैंडस्केप्स, उसको प्रोटेक्ट करना है बाय 2020. सेकेंडली, हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड्स. हमें उनका हैबिटेट प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, रिसर्च एंड डेवलप करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड करना है. एंड इसी प्रोग्राम के अंदर इट वाज सेड कि यार एवरी कंट्री वुड व्हाट दे वुड डू इज फर्स्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि पहले तो असेसमेंट पता चाहिए ना कि कितने स्नो लेपर्ड्स है. आपको पता ही नहीं है कि कितने स्नो लेपर्ड्स है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके एफर्ट्स का क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है. तो बेसिकली ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर इट वाज सेड दैट एवरी कंट्री वुड टेक अ सेंसेक्स, इट वुड डू एन असेसमेंट ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको पता चाहिए. ठीक है, तो हमने स्नो लेपर्ड भी देख लिया, उसके साथ क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड हमने देख लिया, हमने स्नो लेपर्ड देख लिया कि कहाँ मिलता है, कौन से कंट्रीज में मिलता है, इंडिया में कहाँ मिलता है, IUCN स्टेटस देख लिया सबका, सिक्योर हिमालय देख लिया, हिमल संरक्षक देख लिया. देन वी लुक्ड इनटू ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड उसका इकोसिस्टम. ऐसे याद रखो, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम. सिक्योर हिमालय भी देख लिया, बिश्केक डिक्लेरेशन देख लिया, हमने देख लिया कि 718 है, सबसे ज्यादा लद्दाख है, उसके बाद उत्तराखंड है जहां सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं. स्नो लेपर्ड को हम घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोलते हैं, एंड दे हैव व्हाट डू से कैमोफ्लेज होते हैं, वो इतने ज्यादा मिक्स हो जाते हैं इन द माउंटेनस बैकग्राउंड, दे आर नॉट इजी टू विजिबल नहीं है, इजीली विजिबल नहीं है, कैमोफ्लेज दिखाते हैं वो. तो ये इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोलते हैं. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज एज आई सेड कि हमने स्नो लेपर्ड का भी क्या कर लिया, फर्स्ट टाइम असेसमेंट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम इंडिया विल सून गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर डॉल्फिन्स. इन गंगा एंड इंडस रिवर डॉल्फिन्स फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक असेसमेंट कर रहे हैं. अब यहाँ असेसमेंट 8000 किलोमीटर का हो रहा है, जहां सेंटर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम मिल के क्या कर रहे हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन्स एंड इंडस रिवर डॉल्फिन्स दोनों का असेसमेंट कर रहे हैं. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. हम पॉपुलेशन जब बोल रहे तो हमने देखा कि यार असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि यार उनका जो पॉपुलेशन है वो कम ज्यादा क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि इट शोज कि यार इकोसिस्टम का क्या स्टेटस है. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज. अगर हमें रिवराइन इकोसिस्टम, रिवर में अगर पोल्यूशन बढ़ गया तो क्या होगा, गैंजेटिक डॉल्फिन्स कम हो जाएंगे. अब जब गैंजेटिक डॉल्फिन्स कम हो जाएंगे तो इट शोज, तो they act as an indicator species, they show the status of ecosystem. तो इसको हम इंडिकेटर स्पीशीज भी बोलते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन्स को. ठीक है. अब ठीक है, यहां भी एक था. So there are dolphins, not Gangetic dolphins. There are aquatic dolphins which are seen in the Gujarat coast. So Gujarat is also doing its first of its Sensex Gujarat. Then Project Dolphins के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, हम सारे डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट रिवराइन डॉल्फिन्स. हम जो हमारे ओशनिक डॉल्फिन्स हैं, एक्वेटिक डॉल्फिन्स हैं, हम उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो इन न्यूज, कंटिन्यूसली न्यूज में होता है. अब जब हम रिवराइन डॉल्फिन्स हम जब देखते हैं तो हम फोकस करते हैं कौन सी मेथड से हम ये सेंसेक्स कर रहे हैं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट करता है, बिहार गवर्नमेंट करता है. तो टैडम बोट मेथड होता है विच इज यूज इन डॉल्फिन सेंसस. ये द हिंदू के आर्टिकल में आपको ये वर्ड अगर सर्च करोगे तो ये आर्टिकल्स में छुपा हुआ वर्ड है विच यू शुड नो, टैडम बोट मेथड. तो क्वेश्चन कुड बी व्हाट इज टैडम बोट मेथड, इस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो एटलीस्ट यू शुड नो डॉल्फिन सेंसस, जो गैंजेटिक डॉल्फिन सेंसस है, रिवराइन डॉल्फिन है, उसको जब सेंसस करते हैं तो टैडम बोट मेथड हम यूज करते हैं, टैडम बोट मेथड. मूविंग फॉरवर्ड, जब हम टैडम बोट मेथड देख रहे हैं, एज आई सेड कि डॉल्फिन तीन टाइप के, मतलब बेसिकली दो टाइप के डॉल्फिन्स होते हैं, एक तो रिवराइन डॉल्फिन एंड मरीन डॉल्फिन्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है, इसका एम ये नहीं है कि सिर्फ हम रिवराइन डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करें, वी ऑल्सो प्रोटेक्ट मरीन डॉल्फिन्स. तो रिवराइन डॉल्फिन्स एंड मरीन डॉल्फिन्स का हमें पॉपुलेशन का कंजर्वेशन करना है एंड उनको
एनहांस करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन फोकसेस ऑन मरीन डॉल्फिन्स या रिवर डॉल्फिन्स या बोथ ऑफ देम, तो यहाँ दोनों पर फोकस कर रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उनका हैबिटेट कंजर्व करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा तो उसमें कोई भी एनिमल का प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट लायन हो गया तो हैबिटेट कंजर्वेशन रहेगा तो यहाँ में हैबिटेट कंजर्वेशन करना है, पोल्यूशन रिडक्शन करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस डॉल्फिन्स आर अफेक्टेड बाय द वाटर पोल्यूशन। सेकेंडली हमें रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ डॉल्फिन्स का बढ़ाना है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर देम। कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है to raise awareness about the importance of dolphins. So Project Dolphin is an important project जहां हम उनका habitat protect कर रहे हैं, उनको monitor कर रहे हैं, research and development कर रहे हैं, community engagement कर रहे हैं, trying to tell their importance. And it is a 10-year program and it is done in collaboration with MOEF, in collaboration with National Mission on Clean Ganga. इनके collaboration में ये Project Dolphin launch किया गया है। तो Project Dolphin is a program which protects not just riverine dolphin but also marine dolphins. ठीक है? I hope you are able to get important points from this part. Project Dolphin क्या है? And Dolphin Sensex India conduct कर रहा है with respect to Gangetic and इंडस वाटर का फर्स्ट टाइम हम सर्वे कर रहे हैं एक साथ। एवरी ईयर इट हैपेंस बट स्टेट गवर्नमेंट करता था, इंडिपेंडेंट करते थे। तो इस बार क्या कर रहे हैं, हम पूरा गैंजेटिक डॉल्फिन्स एंड पूरे इंडस वाटर डॉल्फिन्स का हम सेंसेक्स या असेसमेंट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव, जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, वी ऑल्सो हैव माई गंगा माई डॉल्फिन इनिशिएटिव विच कम्स अंडर नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। एंड व्हाट वी ट्राई टू डू अंडर दिस प्रोग्राम माई गंगा माई डॉल्फिन इज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट डॉल्फिन बेस्ड इको टूरिज्म इन इंडिया। तो हम क्या कर रहे हैं, माई गंगा माई डॉल्फिन के इस इनिशिएटिव के अंडर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इको टूरिज्म एंड डॉल्फिन बेस्ड इको टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं अंडर दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। एंड हम यहाँ हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डेवलप एरियाज जहां डॉल्फिन ज्यादा दिखते हैं, तो हम अवेयरनेस रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दिस माई गंगा माई डॉल्फिन, बिकॉज इट कम्स अंडर नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। क्योंकि जब हम गंगा को क्लीन करेंगे इफेक्टिवली क्या होगा, नंबर ऑफ डॉल्फिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो दैट इज व्हाई देयर हैज बीन अ कोलैबोरेशन ऑफ MOEF विद नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। इस वजह से जब हम गंगा क्लीन करेंगे तो क्या होगा, वो हैबिटेट क्लीन हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा एंड रिवर एंड डॉल्फिन्स का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी। फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, ये विक्रमशिला बिहार में है। इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे गए हैं, तो यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। जब हम डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डॉल्फिन। बेसिक क्योंकि यूपीएससी हैज आस्क्ड 1 or 2 times questions on gangetic dolphins पूछा है। PYQ सर्च करना, डॉल्फिन्स पर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। अब पूछोगे सर पहले पूछा है तो इस बार ये आएगा क्या, पिछले साल पूछा था कि व्हेन इज विच एनिमल इज स्टेट एक्वाटिक नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से पूछा है। अब अगले बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन, या प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो रिवरेंट डॉल्फिन है उसके क्या क्या व्हाट से फीचर्स है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, इज इट फाउंड इन भूटान, इज इट फाउंड इन नेपाल और इज इट फाउंड ओनली इन इंडिया, इस तरीके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या बांग्लादेश में भी मिल सकता है। तो जब आप एक टॉपिक देख रहे हो तो उसके अराउंड भी आपको टॉपिक पता चाहिए। एंड न्यूज में भी है, मैंने बताया कि ये देखो सर्च करना, ये न्यूज आर्टिकल में इट सेड दैट इंडिया इज गोइंग टू डू रिवर एंड डॉल्फिन का फर्स्ट टाइम असेसमेंट करने वाला इंडिया एट द नेशनल लेवल, इंडस एंड गैंजेटिक डॉल्फिन्स दोनों। अब जो इंडस डॉल्फिन है हम देखेंगे आगे, ये कहाँ मिलता है ये आपको पता चाहिए, आपको रिवर्स इंजिनियरिंग में पता चाहिए। इंडस एंड बियास रिवर दोनों में मिलता है, इंडस एंड बियास। एंड गैंजेटिक डॉल्फिन कहाँ मिलता है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी सोच रहा है कि यार आप सर्च कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि इतने डेप्थ में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो आपका रोल बनता है कि आप जाके देखो, एटलीस्ट जाके देखो। एंड जब हम लास्ट में रिवाइज करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार सारी चीजें ऑटोमेटिकली लिंक हो रही है। ठीक है, तो एक तो हो गया हैबिटेट कहाँ मिल रहा है इंडिया में, वेयर डू यू फाइंड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। एक तो है कि गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलता है, नेपाल में यू फाइंड इन कर्नाली सप्तकोशी रिवर सिस्टम में मिलता है, एंड बांग्लादेश में मेघना कर्णपुली संगू रिवर सिस्टम में यू फाइंड गैंजेटिक डॉल्फिन्स। तो 3 जगह मिलता है, एटलीस्ट यू शुड नो, नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में यू हैव गैंजेटिक डॉल्फिन्स। अब ये क्या है बेसिकली दे कैन ओनली सर्वाइव इन फ्रेश वाटर एंड इसेंशली वो ब्लाइंड है, सिर्फ फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर, बिकॉज दे टेल यू कि यार रिवर का पोल्यूशन स्टेटस क्या है। अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो नंबर कम हो जाएगा, अगर पोल्यूशन कम हो गया तो नंबर बढ़ जाएगा। तो दे टेल यू कि एक्चुअल पॉपुलेशन इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है, तो इट इज नोन एज इंडिकेटर स्पीशीज। अब इसको सुसु भी बोलते हैं, इसका निकनेम है। बेसिकली व्हाट दे डू इज एज दे आर बाइंड दे व्हाट यू से दे कम्युनिकेट थ्रू echolocation. So basically what they use is they use what do you say sound waves
फॉर कम्युनिकेशन इन दिस, जितना भी इतना पोल्यूटेड वाटर है तो यहाँ ये यूज करते हैं बेसिकली, मतलब साउंड वेव्स पर मेजरली रिलाई करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबल बॉडीज होती है, सो एक इम्पॉर्टेंट है, उनकी बॉडीज स्ट्रीमलाइन होती है टू अडेप्ट टू द वाटर स्ट्रीम को, एंड दे कैन स्विम एट अ वेरी व्हाट यू से एट अ वेरी क्विक रेट बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल बॉडीज एंड द स्ट्रीमलाइन बॉडीज। उनका जो फ्रिक्शन लेवल है वो बहुत कम होता है। दे डाइट इनमें प्राइमरली फीड ऑन फिश है, एंड मतलब इनमें मेजरली कैन ऑल्सो इंक्लूड क्रस्टेशियन, तो मेजरली फिश पर दे प्रे, एंड दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2009। 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसका स्टेटस दिया है। IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये साइट्स के जो कन्वेंशन है जो हम आगे देखेंगे उसके अपेंडिक्स 1 में एंड CMS के अपेंडिक्स 2 में आता है। तो इतना अगर आप जान लोगे तो मोर देन इनफ है, साइट्स एंड CMS के अपेंडिक्स में। तो बेसिकली साइट्स अपेंडिक्स 1 में वो एनिमल्स है जो हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, उनको अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है ऑफ साइट्स। एंड स्कॉप्स के कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स 2 में है, जहां अपेंडिक्स 2 में डाला जाता है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये आपको पता चाहिए कि दीज आर एज दे माइग्रेट अक्रॉस द रिवर सिस्टम, तो ये माइग्रेटरी स्पीशीज भी है, तो इंपॉर्टेंट व्हाट यू से इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज है, एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। एंड नॉट जस्ट नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये स्टेट ऑफ एटलीस्ट पंजाब का क्या है, व्हाट यू हैव इज आसाम का, बेसिकली आसाम का this Ganga river dolphin is state aquatic animal of Assam is Gangetic dolphin, and पंजाब का Indus river dolphin is पंजाब का state aquatic animal। तो ये दो भी न्यूज में था, अगर आप न्यूज सर्च करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये न्यूज आर्टिकल से ही मैंने उठाया है। द हिंदू डाउन टू अर्थ से में ही ये दोनों चीजें मेंशन थी, वेयर इट सेड दैट हम जब इंडस वाटर डॉल्फिन का सेंसेक्स करेंगे या असेसमेंट करेंगे या गैंजेटिक डॉल्फिन का करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि इट इज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, एंड पंजाब का इंडस वाटर डॉल्फिन स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, एंड आसाम का इंडस वाटर गैंजेटिक डॉल्फिन है। तो इस तरीके से ये न्यूज आर्टिकल्स में थे, ठीक है। तो गैंजेटिक डॉल्फिन्स हमने देख लिया कि कहाँ मिलते हैं, अक्रॉस गैंजेटिक रिवर ब्रह्मपुत्र सिस्टम में भी मिलते हैं। सेकेंडली वी ऑल्सो लुक इनटू इको लोकेशन में ये ज़्यादा फोकस करते हैं, वेयर साउंड वेव्स का यूज़ करके दे ट्राई टू कम्युनिकेट। इंडिकेटर स्पीशीज है, सुसु बोलते हैं इनको निकनेम, एंड स्टेट एनिमल ऑफ आसाम भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है जब भी हम ये करेंगे। एंड क्यों हम इसका सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि हर बार क्या कर रहा था यूपी गवर्नमेंट एवरी ईयर इंडिविजुअल करता था, अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने 8000 किलोमीटर्स विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमने क्या बोला है कि अब ओवरऑल सर्वे करेंगे, हम क्या करेंगे स्टेट वाइज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट क्या कर रहा था, मतलब दे वर नॉट डूइंग इट इफेक्टिवली, दे थॉट कि यार लेट्स हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे एटलीस्ट वंस, जिससे हमें एक आइडिया पता चलेगा कि कितने डॉल्फिन्स है, रिवराइन डॉल्फिन्स कितने हैं। जैसे हमने इंडस वाटर डॉल्फिन देखा, हमको गैंजेटिक डॉल्फिन देखा, आपको इंडस वाटर डॉल्फिन भी पता चाहिए, इंडस रिवर डॉल्फिन, ये इंडस एंड बियास रिवर सिस्टम में है, बियास मेजरली पंजाब में है। एंड व्हाट यू से इसके लॉन्ग स्नाउट होते हैं, एंड बेसिकली इनकी भी व्हाट यू सी इज आईसाइट रिड्यूस्ड होती है, इसको भूलन बोलते हैं इन पाकिस्तान। एंड ये एक इंपॉर्टेंट है, दीज आर ऑल्सो इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स एंड इकोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीशीज है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, वो भी एंडेंजर्ड था, ये भी एंडेंजर्ड है, तो दोनों एंडेंजर्ड है। देन व्हाट वी हैव इज इरावदी डॉल्फिन्स। इरावदी डॉल्फिन्स आर ऑल्सो रिवराइन डॉल्फिन्स, मेजरली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में यू विल फाइंड दिस डॉल्फिन्स। रिवराइन डॉल्फिन्स है, नॉट फाउंड इन जस्ट रिवर्स बट दे आर फाउंड इन लेक्स ऑल्सो, जैसे चिल्का लेक में यू विल फाइंड इरावदी डॉल्फिन्स। along the हमारे ईस्टर्न कोस्ट यू विल फाइंड लॉट ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स, एंड मेजरली ये इरावदी रिवर में which is present which flows through ASEAN countries, there you will find this Irrawaddy dolphin, and you will find then Mahakam river, Mekong river and Ayurveda Irrawaddy rivers में you will find this dolphins है। they live in both fresh water and marine water, दोनों में लेते हैं, and ये भी endangered है, IUCN status इसका endangered है। इंडिया में they are also found in Chilka Lake also, Sundarbans में you will find, because they live in both fresh water and मरीन वाटर, सलाइन वाटर में यू विल फाइंड दिस व्हाट यू से, दोनों एनवायरनमेंट में रहते हैं। एंड मेजरली जो रिवराइन सिस्टम में मेजरली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के कोस्टल रीजन में मिलते हैं, रिवर सिस्टम में भी मिलते हैं, तो नॉट जस्ट इन रिवर बट कोस्टल रीजन में भी यू विल फाइंड इरावदी डॉल्फिन्स। ठीक है
ठीक है, आई होप आपको इरावदी डॉल्फिन्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स एंड इंडस वाटर डॉल्फिन्स तीनों कवर कर दिए हमने। क्यों हम कर रहे हैं, हम इसका न्यूज में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर आर दे आर गोइंग टू डू अ सर्वे ऑफ डॉल्फिन्स। ये न्यूज में भी था, पीआईबी में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, जब हम डॉल्फिन्स देख रहे हैं, रिवराइन डॉल्फिन्स देख रहे हैं, तो इंडिया हैज साइंड दिस इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ना, मतलब इट इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट एंडेंजर्ड रिवर डॉल्फिन का डिक्लेरेशन है। इसका नाम है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स, विच इज साइंड बाय countries, मतलब multiple countries have signed this. We have 11 Asian and South Asian countries which have signed it. ये कोलंबिया में एक समिट हुआ था, there it was said that we'll be signing this declaration for protection of riverine dolphins. एक important है, तो यहाँ बोला गया था 6 surviving species of riverine dolphins हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब इसमें एक्चुअली 6 डॉल्फिन्स नहीं है, 6 रिवराइन डॉल्फिन्स नहीं है, एक 5 डॉल्फिन्स है एंड 1 पोर्पोइज है। तो डॉल्फिन एंड पोर्पोइज दो सिमिलर लगते हैं बट अलग है। तो ये क्या है, पोर्पोइज भी, ये पोर्पोइज है वो भी रिवर में मिलता है। तो बेसिकली यह क्या बोला गया था, हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका नाम है ग्लोबल डिक्लेरेशन रिवर डॉल्फिन। इसमें एम क्या था कि रिवर डॉल्फिन्स का हम एक्सटेंशन से बचाएंगे। इंडिया ने भी इसको साइन किया अलॉन्ग विद 11 कंट्रीज, एशियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने साइन किया है, एक इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली व्हाट वी हैव सीन इज, जो रिवराइन डॉल्फिन है ना, उसका पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। अब इसका एम क्या था कि टू हॉल्ट द डिक्लाइन ऑफ ऑल रिवराइन पॉपुलेशन, डिक्लाइन जो है रिवराइन डॉल्फिन का, उसको कम करना है बाय 2030। एंड इसके अंडर हम वेरियस मेजर्स लेंगे, जैसे उसका हैबिटेट प्रोटेक्ट करेंगे, हम प्रोटेक्टेड एरियाज डेवलप करेंगे फॉर रिवराइन डॉल्फिन्स, हम क्या करेंगे, ओवर फिशिंग एंड इंडिजिनस कम्युनिटी को, ओवर फिशिंग अवॉइड करेंगे, इंडिजिनस कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स। अब इसमें कौन से रिवराइन डॉल्फिन्स इंक्लूड किए गए हैं, एज आई सेड इसमें 6 बोला गया है, लेकिन इसमें से 6 में से 5 डॉल्फिन्स है और एक क्या है, पोर्पोइज है। पोर्पोइज इज अ मरीन एनिमल विच लुक्स सिमिलर टू द डॉल्फिन्स बट एक्चुअली इट इज नॉट अ डॉल्फिन। तो एक इंपॉर्टेंट है, बोलते समय ये ग्लोबल रिवराइन डॉल्फिन डिक्लेरेशन है, बट इट इज नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग, व्हाट यू से, इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग सिर्फ डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करना ही कर रहा है, एक पोर्पोइज को भी कर रहा है। अब इसमें कंट्रीज कौन सी है, कंट्रीज में यू हैव पार्टिसिपेटिंग बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बोलिविया, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, पेरू एंड वेनेजुला। तो एशियन कंट्रीज एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगा। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये 3 कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, तो आपको याद रहेगी क्योंकि हमारे इंडस वाटर डॉल्फिन्स एंड हमारे व्हाट यू से गैंजेटिक डॉल्फिन जहां जहां मिलती है वहां ये है। इरावदी डॉल्फिन्स, दो इरावदी डॉल्फिन इज कंजर्व्ड अंडर दिस डिक्लेरेशन, बट वो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सदर्न साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज 11 लोगों ने साइन किया है। इसमें कौन से डॉल्फिन्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तो है अमेजॉन डॉल्फिन जिसको पिंक डॉल्फिन भी बोलते हैं, इंडस डॉल्फिन जो हमने देखा है, गैंजेटिक डॉल्फिन हमने देखा, इरावदी डॉल्फिन एंड टुक्सी डॉल्फिन है, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। एंड apart from that what we are protecting is Yangtze finless porpoise, इसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो 5 डॉल्फिन्स है, इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। Yangtze finless porpoise है, porpoise is different। So basically जब हम देखते हैं whales, dolphin and porpoise are aquatic mammals, 3 aquatic mammals है, porpoise हो गया, डॉल्फिन्स हो गया एंड वेल्स हो गया। तो ये 3 टाइप के एक्वेटिक मैमल्स होते हैं मरीन रीजन में। तो हम इसमें, एंड पोर्पोइज एंड डॉल्फिन लुक सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ Yangtze finless porpoise हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंडर दिस डिक्लेरेशन। पहले एक Yangtze रिवर डॉल्फिन भी था, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, कि आपको पता चाहिए, ठीक है। Yangtze रिवर में एक डॉल्फिन होता था, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। सो प्रेजेंटली वी हैव 5 एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स। कौन से हैं, 3 तो हमने देख लिया, उसके ऊपर हमने अमेजॉन डॉल्फिन या पिंक डॉल्फिन एंड टुक्सी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट, बट एंड Yangtze फिनलेस पोर्पोइज। तो ये आपको पता चाहिए कि हम ये डिक्लेरेशन के अंडर साइन प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया ने साइन किया है, इस वजह से एटलीस्ट यू शुड नो दिस डिक्लेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव इज वैकिड पोर्पोइज, ये भी न्यूज में था। वैकिड पोर्पोइज जैसे मैंने बताया ना, पोर्पोइज अगर देखोगे तो ये डिफरेंस है, दीज आर डॉल्फिन्स एंड दीज आर पोर्पोइज। तो बेसिकली अगर देखोगे लुक वाइज बोथ ऑफ देम लुक सिमिलर है, ठीक है। अब जो पोर्पोइज का जो बीक होता है ना, सामने का जो बीक होता है वो शॉर्टर होता है, वेयर एज डॉल्फिन का ये बड़ा होता है बीक, ये डिफरेंस है।
ठीक है। जो फिन के बाद का जो एरिया है वो डॉल्फिन का बड़ा होता है, इनका शॉर्टर होता है, ठीक है। दोनों एक्रोबैटिक होते हैं, दोनों एक्रोबैटिक होते हैं। तो एटलीस्ट दीज आर मतलब दीज लुक सिमिलर बट दीज आर डिफरेंट फैमिलीज है। डॉल्फिन्स अलग है एंड पोर्पोइज अलग है। डिफरेंस कैसे याद रखोगे? पोर्पोइज में यू हैव अ शॉर्टर स्नाउट, जो सामने का पार्ट होता है वो शॉर्टर होता है, what do you say, dolphins में बड़ा होता है। तो it was also in news that Vatic porpoise, which is present in Gulf of California, which is critically endangered, International Whaling Commission ने बोला था कि ये Vatic porpoise is going to go extinct। Vatic porpoise है, this is another species, ये अलग है। Yangtze finless porpoise तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंडर ग्लोबल रिवर डॉल्फिन डिक्लेरेशन, लेकिन ये Vatic porpoise भी न्यूज में था एंड it was said that it is going to go extinct। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने बोला क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा फिशिंग हो रहा है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ऑलरेडी, अब इसका एक्सटिंक्शन होने वाला है। किसने बोला है? इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने बोला है, वैटिक पोर्पोइज का, वैटिक पोर्पोइज का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। अब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने बोला है, न्यूज में था, तो एटलीस्ट आपको पता चाहिए कि क्या है। इज इंडिया पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन? यस, इट इज पार्ट। कहाँ लोकेटेड है? इम्पिंगटन, कैम्ब्रिज में लोकेटेड है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेफिनेटली फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेल्स का प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन टू अवॉइड ओवरफिशिंग ऑफ वेल्स, ये है। एंड बेसिकली इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड व्हेलिंग कमीशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, जब भी हम बात करते हैं तो फ्लोरेंस पॉलिस डिक्लेरेशन की बात होती है। हमेशा हमेशा इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन पर कोई भी आर्टिकल रहेगा तो फ्लोरेंस पॉलिस डिक्लेरेशन की बात की गई थी। यहां बात की गई थी कि जो कमर्शियल व्हेलिंग हो रही है जापानीज रीजन में, so it was signed, it was a non-binding declaration which was signed under International Whaling Commission, where it said that we have to stop this whaling, commercial whaling का जो fishing था, we have to stop this commercial whaling, and because क्या हो रहा है? whales का population कम हो रहा है, whales का population बहुत कम हो रहा है। so this was also in news, so International Whaling Commission, आपको पता चाहिए इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन कहाँ है, इम्पिंगटन में है, क्या रोल है, वेल्स का प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने बताया एनिमल्स में, एक्वेटिक मैमल्स में 3 है, एक तो डॉल्फिन, पोर्पोइस एंड वेल्स। तो वेल्स इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने बोला था कि वैटिक पोर्पोइस, एक पोर्पोइस है दैट इज गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट। अब साइड बाय साइड हमने क्या देखा? फ्लोरेंस पॉलिस डिक्लेरेशन, जहां इट वाज अ डिक्लेरेशन व्हिच वाज अगेंस्ट कमर्शियल व्हेलिंग, जहां 40 कंट्रीज ने साइन किया, 27 प्रो व्हेलिंग कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया एंड दे वोटेड अगेंस्ट इट। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लेकिन फ्लोरेंस पॉलिस डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है एटलीस्ट आपको पता चाहिए। एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। मूविंग फॉरवर्ड, न्यूज आर्टिकल में लाइव स्टॉक सेंसेक्स भी है। लाइव स्टॉक सेंसेक्स न्यूज में देखा, हम सेंसेक्स पढ़ रहे थे, हमने कितने एनिमल्स का सेंसेक्स देखा? हमने एनिमल्स का सेंसेक्स नहीं देखा, हमने उसके पीछे फीचर्स भी देखा। हमने लायन देखा, हमने वाइल्ड एस देखा, हमने डॉल्फिन्स देखा, हमने लेपर्ड्स देखा, हमने डॉल्फिन्स के साथ हमने और एनिमल्स देखे, हमने लाइव स्टॉक सेंसेक्स भी देखेंगे, क्योंकि न्यूज में सेंसेक्स है तो एटलीस्ट ये दो नॉट लिंक टू एनवायरमेंट, लेकिन पता चाहिए यहां भी हम एनिमल्स का सेंसेक्स कर रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेशन पता चाहिए। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइव स्टॉक सेंसेस में हम एलिफेंट्स का भी नंबर काउंट कर रहे हैं। एलिफेंट सेंसेस अलग से भी होता है, लेकिन लाइव स्टॉक सेंसेस में यू विल रियलाइज कि यहाँ एलिफेंट का भी हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं। दो एलिफेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लाइव स्टॉक, बट स्टिल हम बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस हम एलिफेंट को भी कंडक्ट करते हैं लाइव स्टॉक सेंसेक्स में, एलिफेंट का भी काउंट करते हैं। तो कितने एनिमल्स को काउंट करते हैं हम लाइव स्टॉक सेंसेक्स के अंडर आपको कवर करेंगे, लेकिन बेसिकली डेफिनेशन तो पता चाहिए। व्हाट आर लाइव स्टॉक्स? बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है। बेसिकली दीज आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट, मतलब दीज आर रेज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। एग्रीकल्चर पर्पसेस इसको रेज किया जाता है फॉर फूड या क्लोथिंग मटेरियल के लिए या लेबर के लिए। तो ऐसे एनिमल्स विच आर रेज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं विच आर रेज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, इसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। एंड दिस लाइव स्टॉक सेंसेक्स हैपेंस एवरी 5 years। तो बेसिकली 20 लाइव स्टॉक सेंसेक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये अभी 21st लाइव स्टॉक सेंसेक्स कंडक्ट किया जा रहा है। इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कंडक्ट कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली इसको कंडक्ट करता है, एंड ये कंडक्ट किया जाएगा फॉर नेक्स्ट 5-6 months के लिए कंडक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ 15 यहाँ 16 बोला है, बट बेसिकली ये 15 है। 15 स्पीशीज का हम काउंट करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे, यू विल फाइंड कैटल्स, बफेलोज, मिथुन, याक, शीप, गोट, पिग, कैमल्स एंड हॉर्सेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। डॉग्स भी काउंट करते हैं, रैबिट्स, एलिफेंट्स। तो यहां अगर आप देखोगे, यहाँ
यहाँ आप मिस कर सकते हो एलिफेंट्स को मिस कर सकते हो. एंड दिस अपार्ट फ्रॉम दिस 15 स्पीशीज व्हाट वी डू इज वी आल्सो डू सेंसस. बेसिकली लाइफ स्टॉक सेंसस की अगर बात करें तो 15 एनिमल्स का हम काउंट करते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इतना कर रहे हैं तो साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, हमने बोला कि यार ठीक है हम इतना नजदीक पहुंच रहे हैं फार्मर्स के, तो हम चिकन का सेंसेक्स, डक, टर्की, गीज, ऑस्ट्रिच, ईमू, इनका फाउल, इनका भी हम नंबर्स काउंट करेंगे, इनका भी हेड काउंट करेंगे. लेकिन लाइफ स्टॉक सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ 15 स्पीशीज है. 15 स्पीशीज में एलिफेंट, हॉर्सेस है जो आपको याद में रखने की जरूरत है. डोंकीज, डॉग्स भी कंडक्ट करते हैं, रैबिट्स भी है, पोनीज, म्यूल हो गया, गोट, पिग, ठीक है, कैटल्स तो करते ही है, मिथुन, याक, शीप. तो कैमल्स याद तो रखोगे लेकिन एलिफेंट मिस कर सकते हो, डॉग्स मिस कर सकते हो, रैबिट्स मिस कर सकते हो. तो ये हम इसको व्हाट डू यू से करते हैं सेंसेक्स, आपको पता चाहिए.